This video is going to give you the exact roadmap month by month that you can follow to crack CLAT 2026 in just next 8 months. Yes, I am not kidding about it. इस वीडियो को मैंने इसी तरीके से फ्रेम किया है कि आप इन 8 महीनों में CLAT 2026 की पूरी तैयारी कर सकते हो. एंड इफ यू फॉलो दिस वीडियो बाय द मंथ ऑफ सितंबर यू विल हैव कंप्लीटेड ऑल योर 5 सब्जेक्ट्स, ऑल योर मंथली मैगजीन्स, इवन योर बैकलॉग. एंड सितंबर से लेके नवंबर तक आप उन 3 महीने कंप्लीटली मॉक्स की प्रैक्टिस एंड एनालिसिस कर सकते हो. सो फॉलो दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. एंड वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू बिफोर आई स्टार्ट इज दैट अगर आप इस वीडियो को 5 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो मैं एक वेबिनार सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें मैं इसी स्ट्रैटेजी को पूरी डिटेल में लाइव आप सबके साथ कवर करने वाली हूँ. सो 5th to 9th कुछ इस तरीके के आपके दिन दिखेंगे. इफ यू जॉइन दिस वेबिनार सीरीज फॉर CLAT 2026 इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Just you need to do is that you need to go to the description below and click on the link of my WhatsApp group जहाँ पे आपको इस वेबिनार को एक्सेस करने का लिंक मिलेगा. और अगर आप ये वीडियो 9th अप्रैल के बाद देख रहे हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल जॉइन दिस ग्रुप टू गेट द फ्री रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटायर वेबिनार सीरीज. इस वेबिनार सीरीज में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ऑल अबाउट CLAT एग्जाम, उसका पैटर्न, उसके क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, then the complete roadmap, live strategy discussion with all of you, a daily timetable that I will share. Apart from that, I will tell you the best resources and books and free study materials that you can refer to. And final, we have a toppers meet where toppers from CLAT exam will come and talk to you live. So this is a very amazing chance. इसको skip मत करो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो. और लेट हो चुके हो ऑलरेडी और बाद में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो still go and watch the webinar recording. They will be very very helpful for you. Now, let's get started with the 8-month strategy to crack CLAT 2026. And apart from these webinar recordings and access to these webinars, I also share daily current affairs material, free monthly magazines, free legal current affairs magazines, and practice questions with all the aspirants. And you can join there if you want to ask me any question and you want free guidance as well. Now, let's get started with the 8-month strategy for the CLAT 2026 examination. So, शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 8 महीनों में एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को इफेक्टिवली कवर करके जाना होगा. पहला, हमारे 5 सब्जेक्ट्स विदाउट अ डाउट. यस, ना ही सिर्फ इनकी थ्योरी को कवर करना है, इनको प्रैक्टिस भी करना है. सेकंड, हमारी मंथली मैगजीन्स जो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं अगर एक बार आपका बैकलॉग बन गया तो. सो वील कवर दैट एज वेल. Then your daily current affairs and newspapers जो आपको daily basis पे करने हैं for your reading practice and also your current affairs segment. And at last but not at all the least, your mocks, practice and analysis of your mocks. अगर आप इस strategy को diligently follow करोगे तो आप इन 8 महीनों में with time spare in your hands इन सभी चीजों को बहुत आराम से cover कर पाओगे. Let's get started. So hi everyone, I formally welcome you all now to day 2 of our CLAT 2026 webinar series, and I hope you all remember. Many of you have already taken day 1 which we had yesterday. So we have day 2 today which is about 8-month roadmap. Now let's formally get started on this. Please everyone listen to me and see on the screen that what do we promise to you today. Keep this in mind. अगर मैंने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया by the end of the session, then I will not be doing justice to you. Okay? So, first promise that I am making to you today is you will see a road for your CLAT exam. Okay? That the road that will take you to your CLAT examination. Promise number 2, you will see what strategy will help you to move on that road. And promise number 3 is you will know about how to move to achieve your dream. And it should come true, right? This is it. A road you will see, a strategy you will find, and how to move on that road and strategy you will understand. Okay? Now, very quickly, कल हमने बात कर ली थी कि CLAT exam कैसा होता है. I'm not going to take up any time on this. Okay, there are 26 NLUs, 24 on the website, total 26 हैं. CLAT is done by consortium of NLUs. Okay, and this is majorly about CLAT exam. We know there are 5 subjects in it. Okay, and these are the 5 subjects: English, CA, GK, current affairs, GK, legal, logical, quantitative aptitude, and this is the weightage. I will not take much time on this. Okay, 120 questions होते हैं, 120 marks होते हैं, 120 minutes होते हैं. Negative marking is 0.25 minus. Okay, that you will get. चलो, now बच्चों, I need your participation here. Okay, let me see that these are the 4 most common symptoms जो आपके जैसे बच्चे जो प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं ना वो फेस करते हैं. ठीक है,
One is analysis paralysis. So you will tell me in the chat box that which number or like which number problem do you face. It can be 1 or 3, 1, 2, 3, 4, or 1 or 4, 2 or 3, whichever it is. Okay. Analysis paralysis is something which you know are stuck, that you're analyzing something so much that you're thinking about something so much that now you are just not able to take a decision. You are stuck. You don't know what to do. You are going through the resources. You're analyzing everything, but you're just not able to understand. Okay. Fear of consequences is that what if I will not be able to clear CLAT? What if the resources I'm using are not enough? What if the kind of guidance I'm getting is just not right? Okay. The fear of something happening in the future. Third, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैंने यहाँ ये नहीं किया, मैंने अगर इस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर मैंने इस क्लास को अटेंड नहीं किया, अगर मैंने इस कोचिंग की बात नहीं सुनी, या मैंने ये काम नहीं किया, या मैंने ये रिसोर्स नहीं पढ़ा, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा. आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. आई विल जस्ट टोटली मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. एंड फोर्थ इज कंपाउंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कि जितना आप सोचते जा रहे हो टाइम बीतता जा रहा है और उतनी ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती जा रही है. बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, न्यूज़पेपर की स्पीड भी नहीं बढ़ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, नथिंग लाइक दैट. ओके, सो आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ यू आर फेसिंग लाइक दीज प्रॉब्लम्स. सो आई होप दैट यू कैन रिलेट कि बच्चों ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है. लाइक अगर ये भाव्या कह रही है, ये सिर्फ भाव्या की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ सलमान की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ तनिष्का की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बच्चे की है. लाइक आई डोंट थिंक सो आज के सेशन में एक भी बच्चा या एस्पिरेंट ऐसा होगा जो ये बोले कि मेरे को तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है. बिकॉज मैं बताऊं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही होती ना इनमें से, आप यहाँ होते ही नहीं. राइट? सो इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 थिंग्स, बट इट हैज टू बी समथिंग फॉर श्योर. और उसी का सोल्यूशन आज मैं आपको दूंगी इसमें. ठीक है? सो देयर इज वन सोल्यूशन बच्चों, वन सोल्यूशन जो सारी चीजों का हल है, विच इज, मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली, बट दिस इज कॉल्ड एज द पैरेटो प्रिंसिपल. क्या होता है पैरेटो प्रिंसिपल? दिस इज द 80-20 रूल. रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा ना. 80-20 रूल होता है, जिसका मतलब है that 80% of your outcomes come from the 20% of the work. इसका मतलब 100 कामों में 100 बार 100 जगह अटेंशन देने की बजाय अगर आप टॉप प्रायोरिटी के काम को चुनते हो, उसी से आपको 80% ऑफ योर गुड रिजल्ट्स मिल जाएंगे. I hope you're understanding. This applies to everything. For example, instead of reading 20 useless books, you read only 2 books which are the most recommended for a particular subject. You have the chance of getting 80% accuracy in that particular subject. Instead of choosing, going ahead for 150 mocks, और उनमें से analyze आपने एक भी नहीं किया, it's better go for 30 mocks, analyze them, and you will get 80% of your output. You understand this? तो इसीलिए लेस इज मोर के कॉन्सेप्ट को समझना, तभी ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो कुछ सेंस बनाएगी दिमाग में. अदरवाइज इट विल बी नॉनसेंस टू यू, इट विल जस्ट नॉट वर्क फॉर यू. ओके, रिमेंबर दिस, दैट 20% काम से आप 80% रिजल्ट्स निकालते हो. बस आप काम कौन सा चुन रहे हो, दैट इज द स्मार्टनेस दैट यू हैव टू लर्न. Okay, you can spend your time wasting around here and there and still wonder कि यार इतना मेहनत किया, करा है ना मेहनत, मैम रिजल्ट ही नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया. Because you were working hard, but you were working hard on the wrong thing, not on the top 20%. You were working hard on anything else. Just a second अजीता. Okay, ऐसा कोई टॉपर मिलता है कि मैं 17 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है, तो तुम उससे दोस्ती तोड़ देना. ठीक है? और अगर मतलब कुछ भी करके उसको बस जिंदगी से निकाल दो बाहर, नस्तो नाबूद कर दो. ठीक है? 17 घंटे पढ़ना, चलो बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ भी रहा होगा, जरूरत ही नहीं है. क्यों पढ़ रहा है भाई, तो क्यों पढ़ क्यों रहा है? मतलब कोई और सिलेबस मिल गया क्या क्लैट की जगह पे? व्हाई द हेल आर यू रीडिंग, मतलब स्टडीइंग फॉर 17 और 15 और 10 और 12 आवर्स अ डे? इट इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर इज अ गुड चांस दैट ही वाज नॉट फोकसिंग ऑन दिस 20% दैट वी शुड फोकस ऑन, और वो बाकी के 80% पे फोकस कर रहा था, जिससे उसको सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा. बट व्हाट वी विल डू, we will focus on the 20% to get the 80% result and even more. Okay, chalo, very good. I hope, I'm very happy that you're all on board with me. Now here everyone, we start the 8-month roadmap. Okay, let's understand. Okay, my bad, this should have been CLAT 2026. Okay, I would have written through year. Okay, so what do we want? We need to crack CLAT 2026, right? And what do we need for that? We need a roadmap to crack our exam, right? यहाँ हम सबको पता है. Cool. So अभी देखो 5 pillars हैं इस एग्जाम की तैयारी के. For all those who have already watched this video, how to prepare for
क्लैट 2026, देयर वाज अ रीजन कि मैंने ये वीडियो इतने टाइम पहले डाल दी थी, ताकि आज के टाइम तक जिन 5 प्रिंसिपल्स की मैं यहाँ पे बात कर रही थी ना, एटलीस्ट आपको उनका आइडिया हो, ठीक है? सो आई विल सजेस्ट फॉर ऑल दोज हु हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो येट, प्लीज वॉच इट, बट इसका मैं ब्रीफ आपको एक बार दे दूंगी अभी, ठीक है? सो देयर आर 5 पिलर्स on which your CLAT preparation is standing. It is based on it. The first one is your syllabus. किसका syllabus? 5 सब्जेक्ट का syllabus. किसी को भी अगर हल्के में लिया तो CLAT को पता चल जाता है, ठीक है? CLAT के पास एक रेडार है जिसको पता चल जाता है कि अच्छा बेटा करंट अफेयर ठीक से नहीं पढ़ के जा रहा, ठीक है, वहीं फंसा देगा, ठीक है? अच्छा क्वांट नहीं पढ़ के जा रहा, कोई बात नहीं, क्वांट के ही क्वेश्चन में फंसा देगा, रैंक आपकी पीछे आ जाएगी। अगर CLAT को पता चला कि अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर आई गेव यू अ हिंट ना कि एनालिटिकल इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने दे दिया, इस साल फिर तुम पढ़ के नहीं गए, कोई बात नहीं, CLAT इस साल तुम्हें पकड़ लेगा। गॉट इट? तो हर किसी के सिलेबस को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है फॉर श्योर। जिसका वेटेज ज्यादा है उसको हम ज्यादा डेप्थ में कवर करेंगे, बट प्रायोरिटी उसको लेके, बट आपको ओवरऑल प्रायोरिटी पे 5 सब्जेक्ट्स को रखना होगा इफ यू वांट अ गुड स्कोर एंड अ गुड रैंक। सिर्फ पास करना है एग्जाम, कहीं पे भी आ जाना है आगे पीछे, तब आप छोड़ सकते हो 1-2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ अगर सच में ढंग से क्लैट को क्लियर करना है 5 पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? देन बुक्स एंड रिसोर्सेज, इसके बारे में आज मैं इसलिए डिटेल में बात नहीं करूंगी बिकॉज टुमारो सेशन इज प्रिसाइजली अबाउट बुक्स एंड रिसोर्सेज, एवरीथिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? पास्ट ईयर पेपर्स, एटलीस्ट लास्ट 5 years के पेपर्स आपको इवेलुएट करने हैं। आई टेल यू अभी इन दी अपकमिंग स्लाइड्स कि आप कहाँ से उसको इवेलुएट करोगे और कैसे इवेलुएट करोगे, ठीक है? बाय द वे जब आप ये वीडियो देखोगे, मैंने आपको इसमें डिटेल में भी आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट हाउ कैन यू डू द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। आई टेल यू, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो बस क्वेश्चन पेपर पलट लेते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। दिस इज नॉट एन एनालिसिस। ऐसा तो आप कुछ भी देख लो, अगर आप किसी की शादी का कार्ड देख रहे हो तो क्या शादी में पहुंच भी गए? नहीं ना, यू जस्ट लुकिंग एट इट। अनलेस यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर्स, टाइमर लगाओ, उसके पेपर को अटेम्प्ट करो, पूरे को भले ही अभी आप ना कर पा रहे हो, सेक्शन वाइज करो। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीगल रीजनिंग को एनालाइज कर रहे हो तो सिर्फ लीगल के पोर्शन को देखो, ठीक है? बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ पेपर एनालिसिस और पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, कि आप एक बुक लोगे, मैं आपको बताऊंगी, एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर्स एंड देन सी कि इजी लगा, टफ लगा, कुछ आया भी है, सर के ऊपर चला गया सारा कुछ, ठीक है? फोर्थ पिलर इज योर न्यूज़पेपर रीडिंग। आई डोंट नो, कुछ लोग आपको मिलेंगे, टॉपर्स भी हो सकते हैं, that they did not read newspapers in their whole preparation time, ठीक है? But one thing that they will not tell you na is they were doing their current affairs very diligently from magazines, from daily current affairs and all the good resources. I also do not suggest newspaper reading for current affairs because uske liye you are reading your monthly magazines, your daily current affairs. I suggest newspaper reading for making your mind work, for your reading speed, for building context. जो कहते हैं मैम समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं पैसेज में बोल क्या रहा है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रीडिंग की हैबिट ही नहीं है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो आपको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग तो टाइम वेस्ट है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, उसकी खुद की रीडिंग स्पीड कैसी रही है पहले वो पूछ लेना। आई कैन बेट ऑन दिस कि वो एक अच्छा रीडर रहा होगा हमेशा। गेटिंग? सो तब अगर वो केस आपके साथ है देन यू कैन स्किप, बट स्टिल आई विल नॉट बी हैप्पी विद इट। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर योर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, फॉर योर कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स जो आप इंग्लिश में यूज करोगे, एंड आपकी क्रिटिकल स्किल्स जो आप यूज करोगे अपने क्रिटिकल एनालिसिस में। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके इससे कवर होंगे, यू गेट इट? एंड फिफ्थ इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अगेन कि आप सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को समझ के अब उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। दिस इज फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स, ओके? नाउ वी विल बी कवरिंग आवर रोड मैप और आवर 8 months इन द नेक्स्ट 4 phases, ठीक है? जिसका पहला फेज कल से शुरू होगा, कल से, ठीक है? आज से भी, लाइक यू हैव जस्ट टुडेज टाइम, from tomorrow your new phase, your first phase will start, okay? So we will cover it in 4 phases, all right? Now let's see, these are the 4 phases. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? वैसे तो आई विल ट्राई टू शेयर दिस विद यू, ठीक है? बाकी मैं इसकी प्रॉपर यूट्यूब वीडियो भी बनाने वाली हूँ एंड आई विल टेल यू दीज आर द 4 phases. फर्स्ट बच्चों इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। जैसे वेबिनार सीरीज को भी स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एग्जाम को समझा, राइट? सो 15 अप्रैल तक का टाइम, यानी 10 दिन का टाइम मैं आपको देती हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम को, इवन आफ्टर कल का वेबिनार, इट्स ओके, टेक योर टाइम, ठीक है? अभी हम देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इसमें हम क्या क्या हमें करना है। देन सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, एज यू कैन सी। देखो 15 अप्रैल के बाद से हाफ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त
क्योंकि यहाँ पे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, आप अपनी यू विल ऑल्सो बिगिन लिटिल लिटिल मॉक्स, यू विल ऑल्सो स्टार्ट सम प्रैक्टिस टेस्ट, यू विल स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन यू एंटर फेज 3 विच इज अ न्यू अप्रोच। आई टेल यू व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यू अप्रोच। ये सिर्फ 1 महीने का है, अगस्त, ठीक है। एंड देन वी हैव द फोर्थ फेज विच इज द आरपीएम फेज, जिसको मैं रिविजन प्रैक्टिस मॉक्स का फेज कहती हूँ, क्योंकि सितंबर से नवंबर ये जो 3 महीने हैं, दिस इज ऑल्सो द टाइम जो क्रैश कोर्स का टाइम होता है। लाइक इन माई कोर्स ऑल्सो वी विल बी डूइंग द क्रैश कोर्स इस टाइम पे। तो आइडियली अगस्त तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सितंबर से नवंबर आप सिर्फ उसका रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिगरसली मॉक्स देंगे, ठीक है। मेकिंग सेंस आ रहा है? थोड़ा दिमाग में आ रहा है बच्चों 4 फेजेस को ब्रेक करके हम कैसे पढ़ेंगे? एनीथिंग? यस, नो? Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड, मैम। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विथ फेज 1। सो फेज 1 हमारा कहाँ तक है? सिर्फ 10 दिन का फेज है, छोटा सा फेज है हमारा, पर बहुत ही क्रूशियल फेज है। अच्छा, कोई भी ऐसा होशियार है अगर आज के वेबिनार में जो इस 10 दिन के फेज को स्किप करना चाहता है, ठीक है, या फिर उसको लगता है कि वो ये वाली चीजों को किए बिना ही सीधा पढ़ना शुरू कर देगा, देन आई एम सॉरी, ये आपके लिए रद्दी है, ये कुछ भी नहीं है रोड मैप, ये आपके किसी काम नहीं आएगा, मैं आपके किसी काम नहीं होंगी, वी लर्न लीगल आपके किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 10 दिन है, तो इसको हल्के में मत लेना, ये बेस है, ये नींव है आपके घर की, आपके रास्ते की, आपकी डेस्टिनेशन की, ठीक है। Vicky, I'll take your doubt, okay, once I've completed this phase, okay? So, the phase 1, we knew it was the understanding the exam in 10 days, ठीक है। So, 10 days में हम इसका टाइम लेंगे। क्या क्या हमें करना है बच्चों? इसमें सिलेबस को समझना है, ठीक है। सच बताऊं तो सिलेबस आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए दैट इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है या नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वाइकेरियस लायबिलिटी है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ फॉर ऑल दोज who do not understand syllabus that well, I'll tell you a good and easy way to cover that syllabus also. अभी आज ही I'll tell you, ठीक है। So 2 days I'm giving to you to understand the syllabus of all the 5 subjects deeply. मैं उस सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों जो कंसोर्शियम ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि 400 से 450 पेज वर्ड्स का वी विल हैव अ पैसेज एंड प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। सीरियसली, लाइक आई रियली वांट टू आस्क कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कि आर यू किडिंग अस? मतलब जिस टाइप के आप क्वेश्चंस दे रहे हो, हाउ डू यू इवन से कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? एंड दैट लाइक कि इतना इतना 3-4 टॉपिक्स दे दिए, हो गया सिलेबस पूरा। आई एम सॉरी, बट शायद कंसोर्शियम ने अपनी थोड़ी मेहनत करने से बचे हैं वो यहाँ पे। दैट्स नॉट द होल सिलेबस। आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज सिलेबस इन ह्यूज डेप्थ व्हेन इट कम्स टू माय यूट्यूब चैनल। उसका मैं आपको दिखा भी दूंगी, आप जाके उसको देखना। इन 2 दिनों में आप आराम से उन वीडियोस को देख लोगे, आराम से समझ जाओगे कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। सो 2 days वील गो फॉर सिलेबस। बुक्स 1 day। नाउ दिस 1 day विल बी टुमारो। कल है आपका ये 1 day जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। देखो, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके पास बुक्स आ जाएंगी, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया दैट ये रिसोर्सेज और बुक्स हैं जिसके साथ मुझे आगे 8 महीनों में पढ़ना है। उसके बाद मुझे कोई भी कुछ भी कह देगा, अरे भाई बहुत ही ऐसी बुक है वैसी बुक है, इसमें तो ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सब बुक्स का सेम होता है। आपको क्या लग रहा है जो मेरे पास बुक्स है जो मैं कोर्स में दे रही हूँ उसमें लॉ कुछ नया लिखा होगा? वो ना वही लिखा होता है, बस पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वो क्लैट एस्पिरेंट के ध्यान से लिखा जाती है बुक, यानी कि वो आपको इजी बनाने के लिए लिखी जाती है, राइट? सो टुमारो विल बी योर दिस 1 day जहां आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी बुक्स, कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी मैगजीन्स को रेफर करना है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये 1 day हम कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देन PYQ एनालिसिस, 5 subjects 5 days I'm giving to you, okay? I will tell you, उस वीडियो को प्लीज देखना, हाउ टू स्टार्ट क्लैट प्रेप वाली वीडियो को। PYQ एनालिसिस आपको कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना कुछ भी नहीं होगा बेटा। अगर आप पेपर को ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ना मॉक्स में मार्क्स आएंगे, ना समझ में आएगा, ना एग्जाम में मार्क्स आने के, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर्स के लिए आई एम गिविंग यू 2 days टू चूज योर न्यूज़पेपर। रीड नहीं, टू चूज योर न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, सब्जेक्ट जो पहला पिलर था, सब्जेक्ट को हम डील करते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या आता है सब्जेक्ट में, दिस एंड दैट। मैं इसलिए इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ बिकॉज देर इज अ शॉर्टकट एंड द शॉर्टकट एग्जैक्टली इज हियर, ओके। सो यू कैन गो बैक टू द यूट्यूब चैनल, वी लर्न लीगल का जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग मोस्टली वहीं से आए हो सब, एंड आई होप कि आपने वीडियोस देखी होंगी। मुझे लीगल वाले वीडियो का थंबनेल मिल नहीं रहा था तो मैं लगा नहीं पाई इस पे। So there is a detailed syllabus of legal as well, जिसमें मैंने
सब्जेक्ट्स के साथ उनके टॉपिक्स भी बताएं, जैसे कि अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसमें स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, एमसी मेहता का केस है, ऑल ऑफ दिस मैंने वो भी लिखा है, ठीक है। तो उसको देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंड आई कैन बेट ऑन दिस, इस टाइम तक एज ऑफ नाउ व्हेन आई स्पीक on this whole internet there is no video on YouTube or anywhere any resource that can give you this detailed syllabus of any of these subjects. सब आपको बता देंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, दिस एंड दैट, nobody will tell you कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका essentials of valid contract है जिसमें ये 5 essentials है, getting? I have told you in that video. So legal का है, logical का you can see already, ठीक है। सिमिलरली क्वांट और मैथ्स का किया है, इंग्लिश का बस बचा है, करंट अफेयर्स का आई विल टेल यू एक मैं अलग तरीके की वीडियो बना रही हूँ, उसमें आपका सब कवर हो जाएगा। इंग्लिश का क्योंकि उतना मतलब टफ सिलेबस था नहीं, तो मैंने उसको भी उतनी प्रायोरिटी पे नहीं दिया। रिमेंबर पैरेटो प्रिंसिपल 20-80 वाला रूल, तो मैंने पहले इस 20% पे ध्यान दिया। सो इन वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपका पिलर नंबर 1 जो 2 डेज का काम था सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बुक्स एंड रिसोर्सेज का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन डे विल बी टुमारो, डे 3 7th April, you will join with me in the webinar and I'll tell you everything. सिंपल चुपचाप जाना, बुक्स को ऑर्डर कर लेना। अगर बुक्स ऑर्डर नहीं करनी है, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम माई एंड ऑल्सो, लाइक एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट इन माई कोर्स ऑल्सो आई एम गिविंग 21 बुक्स हार्ड कॉपी जो आपके घर पे आएंगी। आई टेल यू अबाउट दैट, बट वो मैं कल और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। थर्ड, PYQ एनालिसिस, थर्ड पिलर, ठीक है। PYQ एनालिसिस सिंपली चुपचाप Amazon पे जाओ, ये बुक आई डोंट नो, मेरे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है उस वाल से, बट बिकॉज वेयर इज दिस बुक, आई माई सेल्फ हैव दिस बुक विद मी, तो ये 1 साल पहले की है, उससे कवर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बुक मैं खुद रेफर करती हूँ, मैं पढ़ चुकी, तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं बड़ी शराफत से सबको ये रेकमेंड करती हूँ, ठीक है। चुपचाप जाओ, इस बुक को खरीदो। अगर ये बुक नहीं खरीद सकते हो, इफ यू वांट टू सेव मनी, यू जस्ट कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है ना, दोनों ही ग्रुप्स में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, उसमें फ्री मटेरियल का फोल्डर आपको मिलेगा, एंड वहां पे आपको क्लैट के PYQs मिल जाएंगे लास्ट 5 ठीक है, लास्ट PYQ आपको 5 साल के मिल जाएंगे, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें ना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है, आंसर की है बट डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है, इस बुक में है, ठीक है। ALET की भी है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दिस बुक, ओके। देन फॉर द न्यूज़पेपर व्हिच वाज पिलर नंबर 5, भैया प्लीज प्लीज हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप मुझे कोई भी न्यूज़पेपर दे दो, मार्क्स उतने ही आएंगे, गेटिंग? देयर इज नो डिफरेंस। बस मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है अब तक, गो विद इंडियन एक्सप्रेस। आई एम माई सेल्फ पर्सनली अ फैन ऑफ हिंदू, बट बिगिनर फ्रेंडली और लॉ के परस्पेक्टिव से इंडियन एक्सप्रेस इज अ मोर ओरिएंटेड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करोगे? इनकी वेबसाइट पे जाना, what you have to do, द हिंदू न्यूज़पेपर बस सर्च करना, you will get a link, जो सबसे पहला लिंक होगा वो इनकी खुद का ही वेबसाइट होगा। For 1 week, they give a free trial, both द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। या कोई फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप पे होगा तो आस्क देम कि आपको एक PDF दे देंगे, ठीक है। एक दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ो, अगले दिन दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ो, बस कुछ भी डिसाइड कर लो, आई रियली डोंट केयर, बस इसमें से ही रखना। टाइम्स ऑफ इंडिया इज समथिंग आई विल नॉट सजेस्ट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द पेपर इज अमेजिंग बट नॉट फॉर दिस एग्जाम, ओके। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी चुन लो, जो पढ़ रहे हो अभी पहले से वही पढ़ते रहो, अगर इन दोनों में से कोई तो है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दोनों पढ़ने की बेवकूफी मत करना, ठीक है, प्लीज। मतलब UPSC वाले नहीं पढ़ रहे हैं दोनों अखबार, ठीक है, तो तुम मत पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। यहां तक फेज 1 कंप्लीट हो गया है, 10 डेज में आपको ये सब करना है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? गिव मी अ यस और नो एवरीवन। ये समझ में आया कि हम ये कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड, ओके। आई विल, देखो बच्चों, आई विल टेक योर डाउट्स फॉर श्योर। कल आपको पता है रात के 11:15 के आसपास सेशन खत्म हुआ, क्योंकि 11:15 11:12 11:30 बज रहे थे। I'll take everyone's doubts, okay? Don't worry. I just don't want to break the rhythm of this roadmap, ठीक है? Now, with this, we will reach 15th of April, by the way, which is also the day when our Arambh batch is starting, ठीक है? But इसीलिए मैंने इसको इस तरह से किया है कि अगर जो बच्चे जो एनरोल हो गए हैं, आप भी ये करना बेटा, ठीक है? हालांकि in our classes we will also do the PYQ analysis, like हर सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले we'll take classes, 3 to 4 classes will be for PYQ analysis only, ठीक है? So we'll help you with everything, but still I will want you all to take up this exercise, in 10 दिनों के लिए आप भी तैयार रहना, ठीक है? So all of you people, like निशांत, you are also there in the batch, right? So आप भी पढ़ना इसको, ठीक है? जो मैंने 10 दिन का आपको काम बताया है, ये आप भी करके आना, ठीक है? Now till phase 2 when we begin, we have reached 15th April, ठीक है?
दिस इज फेज 2 बच्चों, विच इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे टफ मैं बोलूंगी, क्योंकि आप बोर हो सकते हो इस फेज में। मॉक्स में बच्चों को मजा बहुत आता है, पर जब मार्क्स गंदे आते हैं फिर मतलब बुरा लगता है। बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर ये स्किप करोगे तो आप मॉक्स में गंदे मार्क्स ही लाओगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू हु हैव दिस थिंग ऑफ इंक्रीजिंग मॉक स्कोर, दिस is the only solution, and I say this very proudly, this is the only solution to increase your mock score. Of course, अगर आप वैसी गलतियों की वजह से you are not reading carefully and so you are committing mistakes in your mock, you are not filling up the OMR nicely या correctly, तब आप गलती कर रहे हो, वो तो है, उसको तो आपको काम करना ही है उस पे, तो आपका mock score बढ़ेगा। बट दिस इज द बेस ऑफ योर मॉक स्कोर। अगर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, पूछ क्या रहा है कुछ पता नहीं, तो कभी स्कोर नहीं आने का आपका, ठीक है। सो फेज 2 इज फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। नाउ बच्चों, व्हाट वी विल डू most of the time, and now please mind my words, I'm saying most of the time because there will be a time when we will take one subject only, but mostly we will always go with 2 subjects at a time, ठीक है। आई होप दैट यू आर वर्किंग विद योर कॉमन सेंस, और आपको पता है कि आप किस टाइप के 2 सब्जेक्ट्स को साथ लोगे। वन सब्जेक्ट विल बी अ बिगर सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट विल बी एन ईजियर और स्मॉलर सब्जेक्ट। सो मोस्टली यू हैव गिवन द राइट आंसर, लीगल एंड करंट। एंड आई होप कि आप सेंस ये बना रहे हो, क्योंकि कल हमने भी डिस्कस किया था 25%, 25%, यानी 50% आपका पेपर जो है वो लीगल और करंट अफेयर से है, ठीक है। बट बच्चों, व्हाट हैपेंस इज ना, करंट अफेयर्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको आप एक बार करके खत्म कर दोगे। सो फॉर ऑल दीज 8 months, योर करंट अफेयर्स इन जीके, करंट अफेयर्स इन जीके, करंट अफेयर्स इन जीके विल गो डेली, 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 डेली। आई विल नॉट गिव यू अ डेज ब्रेक फॉर करंट अफेयर्स इन जीके, क्योंकि एक दिन की एक न्यूज मिस हुई, और मैं फोमो नहीं दे रही बच्चों, ये सच है, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज थी और आपका रिदम टूटा और रिदम गया आपका, और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कैचअप करना, ठीक है। So current affairs is something which we'll do every single day, and the combo of 2 subjects that I'm talking about will be one legal and one easier or smaller subject. अब आप इसमें कुछ भी पिक कर सकते हो, लाइक बिगर सब्जेक्ट में से लीगल ले लिया तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या आप साथ में क्रिटिकल रीजनिंग ले सकते हो, नहीं क्रिटिकल नहीं लेना, सॉरी, आप साथ में क्वांट ले सकते हो या एनालिटिकल ले सकते हो। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एनालिटिकल को स्टार्टिंग में ही करो, वो इसलिए बिकॉज यू आर हाई ऑन एनर्जी। आई वॉन्ट कि आप कुछ बड़े बड़े बढ़िया सब्जेक्ट्स कवर कर लो, ठीक है। एनालिटिकल क्लैट के परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करके जाना है, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप शुरू में ही इतना टाइम उसमें लगा लो, ओके। तो लीगल एंड इंग्लिश वी विल टेक ओवर हियर। अगर आप चाहो तो ये मैंने इसी प्लान के हिसाब से पूरे 8 months बनाए हैं, तो आप बिल्कुल एज इट इज भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो वी विल टेक 2 subjects एट अ टाइम, लीगल एंड इंग्लिश। नाउ आई विल टेल कैसे उसके साथ मूव करना है। मंथली मैगजीन्स में यू विल डू द लेटेस्ट मंथ। कुछ हाईलाइटेड में दिख रहा है स्क्रीन में, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये मेरा कर्सर जहाँ पे है, Don't touch background. Don't touch. अभी मैं इसका रीजन समझाऊंगी, और उसके बाद जितने लोग मुझसे अग्री करते हैं ना, जरा लिखना इसमें चैट बॉक्स में, डोंट टच बेयर एक्ट। मैं बताऊं क्यों। अभी पहले पढ़ने में इतनी मुसीबत हो रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा, करंट अफेयर्स के आते पते नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्पीड बन नहीं रही है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ले दे के हमने अपनी तैयारी शुरू करी है। जस्ट इमेजिन मैं अभी 15 अप्रैल से ही बैकलॉग और लेके बैठ जाऊं जनवरी, फरवरी, मार्च का। सोचो इस बात को, ठीक है। ऑलरेडी आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक अ गुड रूटीन, टू जस्ट फॉलो द राइट रोड मैप, टू कवर अप द सब्जेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट, एंड अभी ही मैं अपने आप को बर्डन दे दूं वो मंथली मैगजीन पढ़ने का जहां से एक्चुअल में बच्चों क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। इफ यू वुड हैव एनालाइज्ड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना, you would have noticed that the most important and the most number of questions come from the last 6 months from CLAT, July, August, September, October, November, और जो स्टार्टिंग के मंथ्स के क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। इसलिए फर्स्ट वी विल वर्क ऑन आवर स्पीड एंड आवर फ्रीक्वेंसी एंड फ्लो, और तब जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वी कैन रीड फास्टर, वी हैव, मतलब हम 3-4 मैगजीन ऑलरेडी तब तक पढ़ चुके होंगे, तब हम अपने बैकलॉग को टच करेंगे। तो अभी कोई भी आपको इस बात से डराने की कोशिश करे कि हो तूने बैकलॉग कवर नहीं किया, हो तेरा 3 महीने का बैकलॉग हो गया, उसको कहना कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना भाई, मैं अपना बैकलॉग कवर कर लूंगा एग्जाम से पहले। देखो, यू टेल मी बच्चों, बैकलॉग आज कवर करना जरूरी है या बस एग्जाम से पहले कभी भी कवर हो जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्लैट बुरा थोड़ी मान जाएगा कि अच्छा आपने तो बहुत बुरा किया यार, आपने तो मतलब 3 महीने का बैकलॉग कब कवर करके आए हो आप, हम तो बुरा मान गए, ऐसा तो होना नहीं है, ठीक है।
तो इमोशनली नहीं सोचना है, डर में नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है दैट जिन 3 महीनों से जब आता ही करंट अफेयर्स कम है तो मैं अभी अपना टाइम उस पर क्यों वेस्ट करूं। जस्ट इमेजिन, छूट भी गया तो कम लॉस होगा। अगर हम लास्ट तक नहीं पढ़ पाए, बीमार हो गए, नहीं पढ़ा गया, स्पीड नहीं बनी, कुछ भी हो गया, तो भी कम लॉस होगा। अगेंस्ट जो आप अगर अब इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स छोड़ोगे इनको पढ़ने के चक्कर में, तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे हम। ठीक है, सो प्लीज अगर आप मेरी गाइडेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो प्लीज अभी बैकलॉग को छूना भी मत। तो लेटेस्ट मंथ की, यानी कि जैसे अगर हम अब अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्च की करंट अफेयर्स मैगजीन बड़ी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाली हुई है, उसी में आपको मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में आपका फ्री फोल्डर है। ठीक है, सो आप जस्ट पिछले मंथ की जो लेटेस्ट आपको अवेलेबल होगी, आप वो चुपचाप वो मैगजीन उठाओगे, उसको पढ़ोगे। आई टेल यू आप उसको कैसे पढ़ोगे। ठीक है, देन डेली करंट अफेयर्स ये आपको रोज करने हैं, रोज करने हैं। अगर आपने वो टाइम टेबल वाली वीडियो भी बोली देखी थी, सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट चाहिए दिन के, दैट्स इट, 10 मिनट ज्यादा तो चाहिए भी नहीं। ठीक है, सो ये आपके डेली वन लाइनर्स एंड न्यूज एनालिसिस हैं। ये मैं वैसे भी ग्रुप में शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपको वैसे भी मिलेंगे। मैम इसका नोट्स भी बनाना होगा? नहीं 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 नहीं, देखो अगर एक बात बताओ ना, जो चीज वो ऑलरेडी 10 लाइन में लिख के दे रहे हैं उसको आप सिर्फ अपनी कॉपी में तो लिख लोगे, उससे शॉर्ट आप क्या बनाओगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इन वन लाइनर्स के न्यूज एनालिसिस के नोट्स बनाओ। मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी, कीप देम ऑल टुगेदर, एक फोल्डर में अपने पास इनको रखना। जब आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे ना, तो आप कुछ भी एक ऐसी चीज है जो आप ऐड कर सकते हो उस टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक था, आपने उसमें कोई चीज आपको मिली, आप उसमें से लिख लो। मंथली मैगजीन का पीडीएफ का फोटो कॉपी ले लो, हार्ड कॉपी निकलवा लो, या अगर आप जैसे मैं आईपैड पे पढ़ती हूँ तो मेरे पास पेंसिल है तो मैं वहीं पे मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, इनके नोट्स मत बनाओ, देयर इज नो पॉइंट, ये खुद नोट्स ही हैं। इनको बेस्ट टू बेस्ट आप कंपाइल करके एक फोल्डर में रख लो, बस हो गया काम। बाकी मंथली मैगजीन को पढ़ना, डेली न्यूज एनालिसिस का नोट्स बनाना होगा? नहीं सरगम, आई विल नॉट सजेस्ट, आई विल अगेन वाई आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि डेली न्यूज एनालिसिस इन अ वे क्या है, वो आपके एडिटोरियल, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो उसी का ही एक शॉर्ट एंड वर्जन है। ठीक है, और उसी का ही एक कंपाइल्ड वर्जन है आपकी मंथली मैगजीन। तो जब आपके लिए कोई और एक मंथली मैगजीन पूरी बना के दे रहा है एक नोट्स फॉर्मेट में ही, बस आई एम सजेस्टिंग कि आपका जब कोई भी ऐसा पॉइंट मिलता है जो नया था, जो वन लाइनर में आया मैगजीन में नहीं था, या न्यूज एनालिसिस में था वन लाइनर में नहीं था और मैगजीन में भी नहीं था, जस्ट वहां जाके चुपचाप उसे नोट कर लेना। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको नोट्स की जरूरत है, और अभी से तो बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, चलो कम से कम आप ये कर सकते हो, स्टार्टिंग के 15-20 डेज या 1 मंथ आप नोट्स मत बनाना, क्योंकि वो इतनी लिथार्जिक एक्टिविटी है, इतना थक जाओगे उसमें कि करंट अफेयर्स में 3 घंटे लगाओगे दिन के, फिर हो गया काम, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी से वन लाइनर्स बस पढ़ो, हैबिट बनाओ। आपको हैबिट होनी चाहिए कि अच्छा यार ये चल रहा है, चाहे इसराइल में वो चल रहा है, वो अच्छा यूएस और चाइना का फिर से शुरू हो गया, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो बनाओ, तब जाके न्यूज़पेपर भी समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि वो उतनी सफिशिएंट है, वो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर ही हो गई है मेरी। ठीक है, सो उसका पीडीएफ ले लो, प्रिंट आउट ले लो, या फिर आप इसका पीडीएफ वैसे अपने उसमें डाउनलोड कर लो। मेक एडिशंस इन दैट मैगजीन ओनली, कुछ भी नया मिलता है वहीं के वहीं ऐड कर दो, उसमें स्पेस भी होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये हर मंथली मैगजीन की छोटी कंपाइलेशन बना लो, उसके नोट्स मत बनाना। मतलब ऐसा मत करना कि उसमें वो 5 लाइनें लिखी हैं, वही 5 की 5 आपने अपनी कॉपी में लिख ली, दैट इज स्टूपिड, आई एम सॉरी। ठीक है, वो मत करना। आप ये कर सकते हो कि भाई जैसे 100 पेजेस में आपकी मंथली मैगजीन कवर थी, आप 15 पेज के ऐसे और नोट्स बना सकते हो जो उसको सप्लीमेंट कर रही हो। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट, नॉट सब्स्टिट्यूट। अगर आपने सप्लीमेंट नहीं किया और सब्स्टिट्यूट किया तो आप अल्टीमेटली फिर से 150 पेज के नोट्स बनाओगे, तो पढ़ोगे क्या? रिवाइज किसको करोगे? मैगजीन को करोगे, अपने खुद के नोट्स को करोगे? So पहले you have to check the sufficiency of the magazine, then only supplement it over with more, little bit more points, facts, or 10-15 more pages max. बस, ठीक है? From where can we add supplements to the note to the monthly magazine, as you said, right? So what you can do is that उसमें तो देखो डायरेक्टली आप ऐड कर नहीं पाओगे। What you can do कि आप मैं आपको ना क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पेज नंबर 25 पे देयर वाज अ टॉपिक विच वाज अबाउट दी लेट्स से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, अब आपको लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे इसमें 4 ऐसे फैक्ट आपको वन लाइनर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिले जो आप ऐड करना चाहते हो उसमें। दैट्स द थिंग, राइट? सो वी वांट टू सप्लीमेंट दीज 4 पॉइंट्स टू द मेन मैगजीन। सो या तो जैसे मैं अभी बताऊं, जिसमें जो मैं क्या करती हूँ, जैसे लाइक आई एम यूजिंग दिस आईपैड, तो मैं तो डायरेक्टली उस पीडीएफ में ही उससे पेंसिल से लिख लेती हूँ, एरो बना के छोटा छोटा, अगर स्पेस है तो। अगर स्पेस नहीं है ना, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट अ स्टार मार्क एंड आई से रेफर टू पेज नंबर दिस इन माय नोटबुक।
You get it? Now I have a notebook जिसमें मैंने लिखा है कि ये पेज नंबर 25 फ्रॉम मैगजीन इंडिया पाकिस्तान इशू एंड दीज आर द 4 पॉइंट्स आई वांट टू ऐड टू इट. तो मैंने अपनी कॉपी में भी रेफरेंस का पेज लिख दिया कि मुझे पेज नंबर 25 पे मैगजीन का ये है जिसका ये सप्लीमेंट है, और वहां पे भी लिख दिया कि मैंने अपनी नोटबुक में पेज नंबर लेट से 30 पे मैंने यहाँ पे इसका कुछ सप्लीमेंट ऐड किया है. तो जब आप उसको रिवाइज करोगे या पढ़ोगे, सिंपल है, आपने यहाँ पे मैगजीन खोली, अच्छा ठीक है मैंने पढ़ लिया, अच्छा पेज नंबर 30 कॉपी में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको तुरंत वो 4 पॉइंट्स मिले, आपका एक साथ रिविजन हो गया. गॉट इट? दिस इज एन अमेजिंग टेक्निक, सेव्स योर टाइम, एंड आप सिर्फ उतना लिखोगे जितना आप याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिविजन भी बहुत लुक्रेटिव बन जाता है. गॉट इट? ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. ओके, नाउ चलो आई टेक अप योर क्वेश्चंस फर्दर. न्यूज़पेपर्स एज आई सेड डेली आपको पढ़ना है, बट ओनली एडिटोरियल्स. ठीक है, किस लिए? क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड के लिए, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स के लिए, एंड योर क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स के लिए, और बस एक कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए कि अच्छा अगर करंट अफेयर्स में कुछ आ भी रहा है कि डीआरडीओ ने कुछ फलाना कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है या कुछ भी, तो कुछ पता तो हो डीआरडीओ का काम क्या है. अच्छा ठीक है, हमने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा था कि डीआरडीओ का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन डिफेंस एंड ऑल ऑफ दिस में. ठीक है, तो आपकी कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए वो आपके लिए रहेगा. नाउ जो पहला है, लेट्स गो विद दिस. आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, हाउ विल यू पिक देम? लाइक लीगल एंड इंग्लिश हमने लिया, तो इन अ डे your ideal time that you give to your bigger subject is 1.5 से 2 घंटा, 1.5 to 2 hours a day. Now for all the students who are taking classes, जो courses ले रहे हैं या कुछ भी हैं, they are naturally giving this time to their prep. ठीक है, क्योंकि अब कोई भी आप क्लास करोगे वो 1.5 से 2 घंटे की कम नहीं होती है ना. So आप बड़े सब्जेक्ट को इतना टाइम दोगे. For all those who are not taking any classes yet, those who are not going to enroll in any coachings, ठीक है, आप क्या करोगे? आप, मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में बताया था, डू इट इन 2 phases. पहला फेज, दूसरा फेज, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लोगे, एंड यू विल ब्रेक दीज 2 hours into 2 parts और 1.5 hours into 2 parts. देखो मैं इसलिए बेटा 1.5 to 2 लिखती हूँ क्योंकि हर किसी की रीडिंग स्पीड और समझने की स्पीड अलग होती है. ठीक है, जैसे आई पर्सनली डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, आई हैव क्वाइट फास्ट रीडिंग स्पीड, बट वो डेवलप हुई. ठीक है, तो मुझे पता है कि कोई 2 घंटे में पढ़ेगा तो मैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकती हूँ. तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा, मैं वो नहीं बता सकती. ठीक है, और जो छोटा सब्जेक्ट है उसको आपको 1 आवर देना है डेली, दैट्स इट. वो आप एक सेटिंग में बैठोगे 50 से 55 मिनट, 1 घंटा, दैट्स इट. ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो गए, कितने, लगभग आपके 3 घंटे हो गए. ठीक है, ये जितने लोगों को लगता है 6 से 7 घंटे, वो बस सुनने में बहुत लगते हैं. अगर आप उन्हें टेक्निकली और ब्रेक्स के साथ करोगे, दे आर नथिंग, और शायद देने भी ना पड़े आपको इतने घंटे. ठीक है, अब देखो मंथली मैगजीन को कैसे टैकल करोगे. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 50 टॉपिक्स ऑन एन एवरेज, 50 टॉपिक्स के आसपास आपकी एक मंथली मैगजीन में होते हैं. अब पूरी जिंदगी फतेह करने मत बैठ जाना एक मंथली मैगजीन के चक्कर में. एक दिन में सिर्फ 2 टॉपिक्स, क्योंकि अभी वी आर बिल्डिंग द हैबिट्स, गेटिंग. सो अभी ओवर इमोशनल नहीं होना है, या मैं आज ही सब पढ़ के खत्म कर दूंगा और मेरे दोस्त को मैसेज करूंगा कि भाई मैंने तो पूरी मैगजीन कर ली. कर भी लोगे, अगले महीने नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो उन 50 टॉपिक्स को बस मार्क करके रख लेना कि ऐसे ऐसे ना उनका ग्रुप बना दो कि 2 टॉपिक्स 16 अप्रैल, दीज 2 टॉपिक्स 17 अप्रैल, दीज 2 टॉपिक्स 18 अप्रैल, ऐसे करके आपको 2 टॉपिक्स में 2 टॉपिक्स पर डे में आप बांट देना. एंड उसके हिसाब से आपके 25 डेज में योर मंथली मैगजीन विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, सो योर 25 डेज मंथली मैगजीन विल बी कंप्लीटेड, एंड जो लास्ट 5 डेज आपके बचेंगे मंथ में, देन यू विल डू योर लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन, जो आप आराम से कर सकते हो. अभी मिलेगी कहाँ से लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन? सो अदर कोचिंग्स में आई ऑल्सो वांटेड टू चेक देयर लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन, पर मेरे को मिली नहीं. ठीक है, क्योंकि देवर पेड, या फिर वो सिर्फ अपने एनरोल्ड बच्चों को देते हैं. बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद यू ऑल, यूर ऑल अ पार्ट ऑफ वी लर्न लीगल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी आप डिस्क्रिप्शन में वापस चेक करना जाके, आपको 2 मंथ्स की, अभी जनवरी फरवरी की बन चुकी है, मार्च की भी बन रही है मंथली मैगजीन. एक एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव मंथली मैगजीन आपको मिलेगी जिसमें सारे टॉपिक्स जो लीगल करंट अफेयर्स के थे वो कवर होते हैं. मतलब चाहे वो एक लीगल अपॉइंटमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, कोई बिल हो, कोई एक्ट हो, कोई scheme हो, policy हो which is related to law, everything will be covered in that legal current affairs magazine. I can tell you, अगर आप वो मैगजीन डिलीजेंटली पढ़ गए ना इस साल, तो आपका लीगल और लीगल करंट अफेयर से बेयरली ही शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, मतलब बिकॉज वो इतनी ज्यादा ध्यान से बनाई जा रही है मैगजीन. ठीक है, सो आप लास्ट 5 दिनों में उस मैगजीन को चुपचाप डाउनलोड करना जाके वहां से डिस्क्रिप्शन से, उसको लास्ट 5 डेज में पढ़ लेना. ठीक है, तब तक लास्ट 5 डेज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अब पूरा महीना खत्म होने के बाद ही हम उसे कंपाइल करते हैं. तब तक वो आपको बन के भी मिल जाएगी और लास्ट 5 डेज में आप इसे कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, अब देखो क्या है.
नाउ इसमें आपके साथ के साथ डेली करंट अफेयर्स चल ही रहे हैं, वन लाइनर्स और न्यूज एनालिसिस जो मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, एंड न्यूज पेपर्स आई हैव टोल्ड यू ओनली एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। इस पूरे प्रोसेस में, करंट अफेयर्स के पूरे प्रोसेस में, करंट लाइक डेली सीए एंड योर न्यूज़पेपर्स में आपको 1 घंटा लगना चाहिए आइडली। अभी नहीं लगेगा, अभी थोड़ा ज्यादा लगेगा। और एडिटोरियल ना बच्चों सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, जो एक लीगल पर्सपेक्टिव के एडिटोरियल्स लग रहे हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग से एडिटोरियल्स लग रहे हैं, वो कब समझ में आएगा? जब पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करोगे, तभी समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो 10 अगर एडिटोरियल हैं, 6 एडिटोरियल हैं, तो उनमें से कोई भी 2 पिक कर लेना बस, ठीक है? उन 2 को आराम से आप 45 डेज में पढ़ लोगे। सो अविनाश यू आर आस्किंग एग्जांपल ऑफ एनी एडिटोरियल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे देती हूँ। व्हाट इज एडिटोरियल? ओह अच्छा, तो आप जब न्यूज़पेपर के 4th-5th पेज पे जाओगे, जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना दोनों साइड पे पेज के, वो एडिटोरियल्स होते हैं, बिग आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है? दे आर दी एडिटोरियल्स। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके क्लैट एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल एक एडिटोरियल आया है कि एक बिल है जो राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया है, बट राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है, वो बिल अटक गया है, एंड नाउ देयर इज अ वो पास हो नहीं पा रहा है। तो उसमें क्या डिबेट चल रही है, लोकसभा ने क्यों पास कर दिया, राज्यसभा ने क्यों पास नहीं किया, बिल पास करने का प्रोसेस क्या होता है, एंड व्हाई दिस बिल इज स्टक। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ठीक है ना? सो Yes, ma'am. That is going from 3 to 4 days. it is. I was just taking a chance. I don't know. I couldn't read newspapers this I this think it's week. about the work. Miss, हाँ, today वक्त it वो तो has, पास हो गया। हाँ, सो वक्त जो है yes, वो today it पास हो have गया। passed. उसको प्रेसिडेंट ने The, असेंट भी दे दी है, वक्त जो बिल। yes, president have So signed that. this is such an important news, and by the way it will be covered in your legal current affairs magazine also, but ये आर्टिकल पढ़ो, है ना, कि भाई क्या है वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल है क्या, क्या इम्पैक्ट होगा उसके आने के बाद, अब तक क्या सिस्टम था, अब क्या नया सिस्टम होगा, दिस एंड दैट, ठीक है? Ma'am, सो मैम एक्सक्यूज मी, हाँ इससे जी, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। किसकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है? द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में से जो हाँ, लैंग्वेज की देखो बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी लैंग्वेज किसके आपको बारे में? कॉम्प्लेक्स लगेगी, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि व्हाट यू कैन डू दैट बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिफोर नॉट आफ्टर, बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर कोई भी एक ना वो चला लेना, यूट्यूब पे न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोस आती हैं जो यूपीएससी वालों के लिए बनती हैं, बट उसको थोड़ा स्किप कर करके अपने जो एडिटोरियल वाले पोर्शन, जिससे भी एडिटोरियल का पढ़ना चाहते हो ना, उसको देखना। उससे ना आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, फिर आपको पढ़ने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। या आपने 15-20 दिन कर लिया। मैं आपको सच बताऊं, 2019 में मैंने पहली बार न्यूज़पेपर्स प्रॉपरली पढ़ने शुरू करे थे। मुझे तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आता था कि बोल क्या रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है। दो माई इंग्लिश वॉज गुड एंड माई कॉम्प्रिहेंशन वॉज गुड, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता था कि अगर जैसे ईरान न्यूक्लियर डील का कुछ चल रहा है या फिर एफएटीएफ का कुछ चल रहा है, अब मेरा ये पता नहीं क्या चल रहा है, हिस्ट्री नहीं पता है, कुछ पता ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ना 20-25 दिन एक न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा था, शायद मैं अनअकैडमी का देखती थी, आप अब वो आता है नहीं, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी फटाफट, और मुझे बड़ा इजी हो गया, और 15-20 दिन के बाद मुझे न्यूज़ समझ में आने लगी थी कि अच्छा यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये इशू है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, क्लैट के लिए इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ी कंपैटिबल रहेगी? बिल्कुल कंपैटिबल रहेगी। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे ना, उसमें डायरेक्ट आर्टिकल्स लिए गए हैं फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो वो पढ़ते हैं, उसी को रेफर भी करते हैं, ठीक है? मैम, चलो, and बच्चों, what about static GK? आई विल टेल यू, ठीक है? स्टैटिक जीके ऑल्सो आई विल टेल यू। एक तरीका है उसका, मैं आपको बताऊंगी। उसमें अभी उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है? वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसमें से एक ही पैसेज आता है, जब आता है तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी। अभी लेट्स जस्ट प्लीज गो अहेड बच्चों, ठीक है? लेट्स नॉट ब्रेक द, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फेज 2 में अभी चल रहा है फेज 2, अप्रैल आपका एंड हो गया है ना, दिस मंथ एंड्स। तो आइडियली आपका जो मंथ है वो कैसा लगना चाहिए व्हेन इट एंड्स? लीगल एंड इंग्लिश आपके स्टार्ट हो चुके होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट, स्टार्ट हो चुके होने चाहिए, ठीक है? न्यूज़पेपर्स आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। मंथली मैगजीन आपकी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, क्योंकि देखो अभी आप 15 से शुरू करोगे तो आप 10 दिन के आसपास, 10-12-15 दिन तो आप पढ़ ही चुके होगे, ठीक है? तो कुछ आपकी मंथली मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। एंड लीगल सीए मैगजीन आपको एक आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि आप देख चुके होगे लास्ट 5 डेज में कि भाई मैगजीन होती कैसी है। इतने आपके गोल्स हैं जो आपको अप्रैल एंड तक अचीव करने हैं, ठीक है? मई 2025 अब आपका शुरू हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इंग्लिश जो आपने बेटा, लेट मी Which magazine should we Ma'am, take? please I will continue tell with you. your I will work. tell you. देखो, which books, which magazines, which resources, online, offline, newspapers, idea, everything tomorrow. Books and Yes, resources, ma'am. day 3, ठीक है? So I will not like confuse you or myself. मैम एक बार लास्ट स्लाइड लगाइए ना। Please continue with your work, please, ma'am. ठीक है? Okay, I am. ठीक है? Is this okay now, सरगम? आप लोग Yes, स्क्रीनशॉट्स ma'am. ले रही हैं ना इसके, तो स्क्रीनशॉट्स की जरूरत नहीं है बेटा।
ये प्लान आपके लिए ही है, मैं आपको ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ी करना है इसका कुछ, ये तो मैंने आपके लिए बनाया था। आई एक्चुअली वॉज मेकिंग दिस प्लान फॉर अ यूट्यूब वीडियो, बट देन आई थॉट कि नहीं, पहले मुझे इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम मई में आ गए, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब देखो, अब आपसे मुझे एक चीज चाहिए, इमेजिन योर सेल्फ एंटरिंग इन टू मे। टेक अ मोमेंट, इमेजिन करो, वरना आप अप्रैल में ही छूट जाओगे। आज 6 अप्रैल पे बैठे रहोगे, मैं मई में पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि भाई हाँ, मेरा अप्रैल एंड तक मैंने 2 सब्जेक्ट, मैं कंपल्सरीली नहीं बता रही हूँ इंग्लिश और लीगल, बट हाँ, एक बड़ा सब्जेक्ट, एक छोटा सब्जेक्ट, इतने फेज तक आ जाना चाहिए। मेरे न्यूज़पेपर मुझे शुरू कर देने होंगे, मुझे मंथली मैगजीन्स का आइडिया लगना शुरू होना चाहिए। गॉट इट। अब हम मे को एंटर कर रहे हैं, प्लीज साइकोलॉजिकली सब लोग एंटर करो मे में। 15 मई तक, हाफ ऑफ मे तक आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। भाई 30 दिन में तो मतलब इंग्लिश पे, मतलब अंग्रेजों को पीछे छोड़ दो आप, ठीक है, इतनी अंग्रेजी पढ़ लोगे 30 दिनों में तो, ठीक है। सो ये मैं इसलिए अभी आपको लंबा टाइमलाइन दे रही हूँ, क्योंकि अभी अभी हमारी स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, हम उतना 1 से 1.5 घंटा पढ़ भी नहीं पाएंगे शायद, या जो भी है। बट 15 मई तक आपकी इंग्लिश मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी, और 16 मई से आप शुरू करोगे अपनी क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने क्यों इंग्लिश और क्रिटिकल को बैक टू बैक रखा है, ताकि इनका जो डिफरेंस है ना, वो आपकी समझ में आए। वरना क्या होता है, इंग्लिश के बाद हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, और क्रिटिकल भी हमें इंग्लिश की जैसी लगने लगती है। सो इन माई कोर्स ऑल्सो आई विल बी मूविंग एग्जैक्टली विद दिस प्लान, कि इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव ऑन विद क्रिटिकल रीजनिंग, ताकि एक स्टॉन्च डिफरेंस जो है मैं आपको समझा सकूं, यानी मैम, प्रिया मैम है, वो आपको समझा सके कि क्या डिफरेंस है इंग्लिश और क्रिटिकल के बीच में, ताकि वो कंटिन्यूटी में आपको समझ में आए। तो 16 मई से आप क्रिटिकल शुरू करोगे। अब 15 मई तक, सॉरी बाय द एंड, अब 15 मई तक आपका ये हो गया, 16 से आपकी क्रिटिकल शुरू हो चुकी है। अब मई में आपकी जो लॉ है वो 66%, यानी 1/3 में से जो 2/3 पोर्शन है, तीन हिस्सों में से जो 2/3 पोर्शन है, वो आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप कर क्या सकते हो ना, आपको समझ में कैसे आएगा कि भाई मेरा 66% कैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। आप जाना, वो जो मैंने लीगल रीजनिंग वाली डिटेल वीडियो बताई थी ना, उसमें आप ना सारे टॉपिक्स को लगा के देखना। कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करूंगी तो मेरे ये 10 टॉपिक्स है, ये मैं 10 दिन में या 15 दिन में कर लूंगी। 15 दिन मेरे यहाँ लग गए, फिर मैं अपना एक सब्जेक्ट और से कॉन्ट्रैक्ट शुरू करूंगी, 7 दिन मेरे यहाँ लग गए, 22 दिन में मेरा इतना हो गया, ठीक है। तो खुद आप उस हिसाब से लगा लेना कि भैया आपका 45 डेज में आप कहाँ पहुंचोगे, एंड आई कैन टेल यू आप 66% अपने सिलेबस पे पहुंच जाओगे। ये आपकी लिबर्टी, आप किसको कब पढ़ना चाहो। आई विल सजेस्ट लीगल में स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से करना, बिकॉज इट इज द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ। उसके बाद आप टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, सिविल कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देन मंथली मैगजीन हमारी चल ही रही है, एंड बाय द एंड ऑफ मई आपकी अप्रैल की मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट, इन 25 डेज। और लास्ट 5 डेज में हमें क्या करना है, लीगल सीए मैगजीन करनी है ऑफ अप्रैल ओनली, अभी मई की नहीं, क्योंकि मई में हो तो मई की मैगजीन तो आपको मिलेगी नहीं अभी, ठीक है। आपको अप्रैल की मैगजीन आपके पास में होगी, तो आप ये करोगे, ठीक है। अब क्या है, आपको हर सैटरडे संडे, अब देखो अप्रैल में अभी कुछ नहीं करना था, बट मई के सैटरडे संडे को आप रिवीजन भी करोगे। जो आपने कुछ कुछ पढ़ा था उसको ना कभी पन्ने पलट लिया करो, देख के आ रहे हो, वरना से मतलब ट्रेन की तरह भागते मत चले जाना, पीछे डब्बे छूट जाएंगे सारे, ठीक है। और मॉक्स ले सकते हो, बट नॉट मोर देन 1 मॉक अ वीक। ये सजेशन है, ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ कि मुझे शुरू से मॉक्स करना पसंद नहीं है। मैं कम से कम आधा 1 महीने की तैयारी रखती हूँ, या मैं रखना पसंद करती हूँ बिफोर आई टेक द मॉक्स, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो यू कैन और यू कैन नॉट, और यू कैन जस्ट टेक ऑल्टरनेट डेज, जैसे कि 4 हफ्ते पढ़ेंगे मई में, तो आप 2 हफ्तों में 2 मॉक्स करके देख लेना, ठीक है। दिस वुड बी द प्लान। नाउ विद दिस यू एंटर जून जुलाई, ठीक है, दिस इज फेज 2 ऑफ योर जून जुलाई, यानी जून से लेके जुलाई तक का फेज जो आपका रहेगा जून का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 16 जो आपका मई था, आपने तब क्रिटिकल शुरू कर दिया था, जिसको आप 15 जून, यानी कि 1 महीने में अब आप क्रिटिकल भी पूरा कर लोगे। देखो बच्चों, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे 1 महीने थोड़ी क्रिटिकल पढ़ते रहेंगे। रिमेंबर, हम और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम एक बड़ा सब्जेक्ट और भी लेके चल रहे हैं, हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, हम अगर आप 12th में तो आप स्कूल भी जा रहे हो, तो मैं ऐसा कोई अनरियलिस्टिक टाइम टेबल या रोड मैप नहीं बनाना चाहती थी। ये बिल्कुल डुएबल है और फीजिबल भी है, कंप्लीट भी आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मई तक आप क्या करोगे, अपनी क्रिटिकल रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे, और 15 जून, ठीक है, 15 जुलाई होगा बेटा ये, ठीक है ना, ये जून नहीं है, जुलाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये कर लिया था, अब यहाँ से आप ये कर लोगे, और जून को, अच्छा सॉरी जून ही तो है, 15 जून तक आप अपना पूरा लॉ कंप्लीट कर लोगे। हमने 15 अप्रैल को लॉ शुरू किया था लीगल,
15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, आराम से 2 महीने में अपना लीगल कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। तो 15 जून तक देखो हमने क्या क्या कर लिया है। हमारा क्रिटिकल कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश तो हम पहले कर चुके थे, और हमारा लीगल, हमारे 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट चलेंगी? मई की मैगजीन यहाँ पे आपकी चली रही है, जो आप 25 दिन तक पढ़ोगे, ये भी मई है, सॉरी अप्रैल नहीं है, मई की मैगजीन आप जून में पढ़ोगे, जो लीगल वाली है, लास्ट 5 दिनों में, ठीक है। अब आप आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बट है बीच में। कहाँ पे बट है? 15 जून के बाद। ये मैं 15 जून तक का बता रही हूँ ना, ये तो देखो ये रोज का है, इसका कोई बात नहीं है, ठीक है। 15 जून के बाद देयर इज अ बट। अब ये बट क्या है कि 15 जून से 25 जून आप लोगे एक ब्रेक। अब ये ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि घूमने फिरने चले जाओगे, जा सकते हो, छोटा मोटा ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एज सच नया कुछ नहीं, ठीक है। आपको ब्रेक लेना है इन 10 डेज का, टू गो बैक टू व्हाट यू रेड सो फार एंड रिवाइज, प्रैक्टिस, टेक टेस्ट एंड टेक मॉक्स। आई टेल यू, अगर आप रिवीजन के बिना आगे बढ़ोगे, जितनी नफरत हो रिवीजन से, उसको आज यहीं छोड़ देना, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ समझ नहीं आएगा। लास्ट में सच में ऐसा लगेगा कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक इन 10 दिन, 15 जून से 25 जून, जब तक हमारा क्रिटिकल, इंग्लिश और लीगल कंप्लीट हो चुका है, 3 सब्जेक्ट्स का। अब आप लोगे मॉक्स, फुल लेंथ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट के क्वेश्चन नहीं भी होंगे, उन्हें कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई कर लेना सॉल्व करने का, स्किप कर लेना। करंट अफेयर्स आप पढ़ते जा रहे हो, वो आप कर पाओगे। इन अ वे आप बहुत अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। एटलीस्ट 3 मॉक्स आप लोगे इन 10 दिनों में, विद एनालिसिस। इसको मुझे ना और बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। सिर्फ मॉक्स नहीं करने हैं, बैठो, उसको एनालाइज करो, मेरी गलती कहाँ हुई है। मैं जब पढ़ चुका हूँ, मेरा क्रिटिकल मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मेरा गलत कैसे हुआ, क्यों गलत हुआ? क्योंकि लिसन टू मी वेरी केयरफुली बच्चों, इफ यू विल नॉट एनालाइज योर मॉक्स दिस टाइम, इन 10 दिनों में ना, विदाउट एनालिसिस अगर आपने मॉक्स किए, तो जो आने वाले महीने हैं ना, आपको अपनी गलती सुधारने का टाइम और मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गलती पकड़ ही नहीं पाओगे। सो अभी अगर आपको ये समझ में आया कि अच्छा यार, मेरे को लग रहा है कि मेरा लॉ में ना फंडामेंटल राइट्स थोड़ा वीक है, तभी मेरे मॉक्स में क्वेश्चन ज्यादा, जैसे आई टेल यू, मैं जब भी मॉक्स करती थी ना, मेरे रिट्स के जो क्वेश्चन, देयर आर 5 रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। वो हमेशा मतलब बड़ी, मुझे तो गलत, मतलब बहुत दिक्कत होती थी उन्हें सॉल्व करने में, और दूसरा मतलब गलत ही होता था मोस्टली उसका आंसर। तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरा बाकी एरिया यहाँ स्ट्रांग है, मेरे रिट्स वीक है। तो मुझे पता था कि मुझे एग्जाम से पहले उन्हें ढंग से पढ़ के जाना होगा, बिकॉज आई एनालाइज द मॉक्स। यू गेट इट? सो इन 10 दिनों में एनालिसिस ऑफ दीज 3 मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आने वाले अब जून से आगे जो टाइम है, आप उन गलतियों को सुधार सको, उस पर ज्यादा ध्यान दे सको, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करोगे, इंग्लिश, लीगल एंड सीआर। कैसे रिवाइज करोगे? कोई नोट्स थे तो आप नोट्स, जैसे लीगल में मोस्टली विल हैव नोट्स, या फिर जैसे कि ये वाली बुक है, ठीक है, जैसे ये ना एक हमारी जो बुक आती है अभी ना, इनमें कवर चेंज होगा इनका, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक ऑफ लीगल रीजनिंग। आप इसको उठा के फटाफट पढ़ सकते हो, ठीक है, कि भाई क्या क्या है। जैसे आई कैन सी पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मोहरी बीबी केस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, बालफोर वर्सेस बालफोर। ये केसेस आप पढ़ लोगे कि अच्छा ठीक है हाँ यार, ये मैंने पढ़ा था क्लास में, आपने रिवाइज कर लिया। जैसे ये वाली बुक है विच यू विल गेट अलॉन्ग विद इट, विच इज अ प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग के, आई होप यू कैन सी, यू आर गेटिंग 20 प्रैक्टिस टेस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड से आप कर सकते हो। अब जिन बच्चों के पास कोचिंग नहीं है, आप कहाँ से कर सकते हो? आई विल सजेस्ट कि आप एक तो PYQs पे वापस जाना और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि लीगल कंप्लीट हो गया है। तो एक बार हमने PYQs को कब देखा था? जब हमें एनालाइज करना था क्वेश्चन पेपर को। अब हम देखेंगे प्रॉपर सॉल्व करके, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो। बाकी आप कुछ मॉक्स अरेंज कर सकते हो, कुछ फ्री मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कहीं से मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। चलो, अब है हमारा टॉपिक इन सेक्शनल टेस्ट। वो वही वाली बात हो गई कि आपको, जैसे अगर आपने 4-5 टॉपिक्स को ब्रेक कर करके आप उनके टेस्ट दोगे, कुल मिला के आप इन दिनों में अपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इन 10 दिनों में अच्छे से रिवाइज करोगे। मंथली मैगजीन लीगल सी आपका चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आगे जो है हमारा जुलाई, ठीक है। ये जुलाई जो है वो लास्ट मंथ है फेज 2 का। ये सबसे लंबा फेज था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा सुनने में अभी, बट ये सबसे लंबा फेज था, और जुलाई आपका इसका लास्ट मंथ है। अब सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से करेंगे? सिर्फ क्वांट, अभी सिर्फ क्वांट करेंगे। देखो, लीगल हो गया, सीआर हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। क्वांट बचा था हमारा, करंट अफेयर्स हम कर ही रहे थे। अब एक बचेगा एनालिटिकल, जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस वाला जो है। बट अभी हम सिर्फ क्वांट को लेंगे,
एंड इसको आप 20 जुलाई तक कंप्लीट कर लोगे। 20 दिन में आराम से 8-10 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वांट के, वो आपके आराम से पूरे हो जाएंगे। और इसको क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा टाइम दे सको इस सब्जेक्ट को, बिकॉज क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हैंड टू हैंड अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई नो निशांत, मैथ्स इज माई वीकनेस ऑल्सो, बट वी आर डूइंग इट इन जुलाई इटसेल्फ ताकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, सो 20 डेज में आप अपनी थ्योरी और फॉर्मुलेज कंप्लीट कर लोगे, फॉर्मुले कंप्लीट कर लोगे, एंड what you will do side by side, you will do topic test or practice test for this. ठीक है, then you can take weekly mocks also, और इस साथ के साथ आप इसमें weekly mocks जो पिछले से कंटिन्यू कर रहे थे वो आप करते रहना। ठीक है, सेम मंथली मैगजीन आपकी चलेगी 25 दिन तक, लीगल मैगजीन चलेगी लास्ट 5 दिन तक। अभी हम जुलाई में है तो कौन सी मैगजीन करेंगे? जून की मैगजीन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जुलाई में 20 तक आपका क्वांट पूरा हो गया था, तो 20 से 25 यानी 20 से 25 जून आप क्या करोगे? फिर से अपने पुराने सब्जेक्ट्स को उठाना, उनकी कॉपी बुक को उठाना, आप कोई भी टॉपिक अगर पहले रिवाइज करने रह गया था आप उसको देखना, प्रैक्टिस टेस्ट दो, मॉक्स दो। आई एम गिविंग यू दीज ब्रेक्स ऑफ 5 to 10 days डेलिबरेटली, क्योंकि इस टाइम तक आते आते आप बर्न आउट हो सकते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रुको, सांस लो और अपने आप को क्रेडिट दो कि आपने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, इन 5 दिन हम थोड़ा ब्रेक भी लेंगे और हम थोड़े क्वेश्चंस को और मॉक्स को प्रैक्टिस करेंगे, बट साथ के साथ मंथली मैगजीन और लीगल करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, वो करते रहना है। ठीक है, अब आपका जुलाई जो है वो एंड हो गया है। लाइक टेक्निकली योर एंड ऑफ जुलाई शुड लुक समथिंग लाइक दिस। कंप्लीटेड, आपका लीगल कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंग्लिश कंप्लीट हो जाना चाहिए, सीआर कंप्लीट हो गया, क्वांट कंप्लीट हो गया, एंड सीए एंड जीके जो इन मंथ्स का था उसका आपका बैकलॉग नहीं है। यू गेटिंग? नो बैकलॉग ऑफ दीज मंथ्स। तो आपने जो ये मंथ थे अप्रैल से लेके, मतलब अप्रैल से लेके अभी तक जुलाई तक, आपने उसका सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको लग रहा है यहां तक आप पहुंच पाओगे? गिव मी अ यस और नो बच्चों, जुलाई एंड तक हम ये कर सकते हैं? अगर जो मैंने प्लान दिया अगर आपने उसको फॉलो किया तो इट इज डूएबल। यस और नो, कम ऑन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेट, आई टेक अ क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली, लेट मी कंप्लीट दिस फेज। ठीक है, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट। ओके, नाउ जुलाई खत्म हुआ, हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, अब सिर्फ एक सब्जेक्ट वैसे बचा हुआ है हमारा, विच इज एनालिटिकल रीजनिंग। अब उसको सबसे लास्ट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लैट में उतना क्वेश्चंस में नहीं आते। इस बार आ भी जाए या नहीं भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम कह नहीं सकते। ठीक है, नाउ फेज 3 इज ओनली ऑफ 1 month, सिर्फ एक मंथ का है, विच इज योर अगस्त। पूरा महीना ऑफ अगस्त इज योर फेज 3 एंड दिस फेज इज ऑफ योर न्यू अप्रोच। न्यू अप्रोच इसलिए है क्योंकि अब शुरू करेंगे हम अपनी मैगजीन्स का बैकलॉग। डू यू थिंक कि जब आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने लगातार मैगजीन्स पढ़ रहे होगे डेली, सो हमारे लिए अब पुरानी मैगजीन्स को पढ़ना इजी होगा या नहीं? गिवन दैट हमारा सिलेबस भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो अब हमें कोई थ्योरी की क्लासेस या थ्योरी की सिलेबस करना ही नहीं है, राइट? अब हम उठाएंगे अपने बैकलॉग को, 3 महीने का जो बैकलॉग था, विच इज जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च, एंड बैकलॉग की मैगजीन से आप लोगे 4 टॉपिक्स पर डे, एंड अभी की मैगजीन के जो 2 टॉपिक्स पर डे थे वो आप करते रहोगे। वन थिंग बच्चों, इस टाइम पे यू विल नॉट एट ऑल डू द मिस्टेक ऑफ स्किपिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस टाइम, बिकॉज लास्ट 6 months आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। तो आप भले ही इस बैकलॉग को कम समझना प्लीज, लेकिन अभी वाले जो करंट अफेयर्स उसको स्किप मत करना, वो आपको वैसे ही करने जैसे आप डेली कर रहे थे। ठीक है, और ये बिल्कुल हो जाएंगे क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है उसको कवर करने के लिए, राइट? अब इकलौता सब्जेक्ट बचा है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, उसे आप शुरू कर दोगे फ्रॉम 1 अगस्त एंड 20 अगस्त तक आप उसको बड़े आराम से पूरा कर लोगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है जो आपके क्लैट में आते हैं। ठीक है, डोंट वरी पीसी, आई डोंट नो योर नेम बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द वेबिनार। ओके, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दिस वेबिनार। ठीक है, ये आपका था 1 month का जो फेज था, न्यू अप्रोच फेज, जिसमें आपका एनालिटिकल भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो बैकलॉग है आपको शुरू कर चुके होगे। Then again, 20 to 25, we will take a break. We will revise analytical reasoning. We will take up some tests, practice test, topic test, and we will do some mocks. And legal CA magazine आप यहाँ पे कर ही रहे होगे, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, finally, this is the most exciting phase, last phase बच्चों, phase 4 of your preparation, which is the real exam prep. क्योंकि अब तक हमने तैयारी जंग की सारी कर ली, अब हम अपने जो वेपन्स है ना उसको टेस्ट करेंगे कि क्या हम बैटल रेडी है भी या नहीं। इसका मतलब आपको अपने डेली सीए पे यहाँ पे बहुत, देखो मैंने कैपिटल में लिखा है कि बहुत अटेंशन देनी है, बिकॉज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से न्यूज को फॉलो करना है। देन सब्जेक्ट्स आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मॉक्स अब आप दोगे 2 मॉक्स पर वीक, बट नेवर मिस टू एनालाइज।
if you are missing to analyze, you are preparing yourself to miss this attempt. I am telling you very seriously. ठीक है, 2 मॉक्स करोगे, एनालिसिस अच्छे से करना है, बैठ के कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको पूरा देखना है। एंड रिविजन आपको करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए थे, मंथली मैगजीन्स थी उसमें कुछ मार्क किया था, मॉक्स देंगे सब कुछ। और मॉक्स को भी कोशिश करना रिवाइज करने की। जैसे कोई मॉक था जिसमें आपने बहुत गलतियां करी थी, उसके एक्सप्लेनेशन को उठा लो कि अच्छा हाँ हाँ मैंने यहाँ गलती कर दी, ये नहीं, ये आंसर था इसका, ठीक है। एंड दिस यू विल रिपीट टिल द एग्जाम। You get it? You will repeat this for September, for October, for November. By the way, this is also the time जब हम वीरल लीगल के आरंभ बैच में we will start the crash course. So this is actually the time of crash course. जब आप रिविजन करते हो, मैराथन क्लासेस लेते हो, प्रॉपर जितना पढ़ा होता है उसको दोबारा से पढ़ते हो, ठीक है। This was your road map. Okay. Now tell me everyone, how was this road map for you? कैसा लगा आपको ये रोड मैप? लग रहा है डुएबल, ठीक से आ रहा है नहीं? Yes, ma'am. What about जीके कब करेंगे? स्टैटिक जीके आप कभी भी कर सकते हो, जब आपका ये जो लास्ट मंथ है, इनफैक्ट जो आपके ये 3 मंथ्स है ना प्रैक्टिस के, रिविजन के, आप तब भी स्टैटिक जीके करने बैठोगे ना, आपको बड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, हमारे डैशबोर्ड पे वी हैव अ कंप्लीट मॉड्यूल ऑफ स्टैटिक जीके, जिसमें 10 से 15 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने खुद सॉर्ट आउट किए स्टैटिक जीके के, उनकी ना हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी बना दी है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनको जाके देख सकते हो और उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक अगर वो आज अवेलेबल होगा मॉड्यूल तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलो, वो पेड बैच में होगा अवेलेबल जो? हाँ प्रगति, वो ना पेड बैच में अवेलेबल होगा। मैं आपको जो पेड नहीं है उनको मैं लिस्ट दे सकती हूँ टॉपिक्स की, बट जो क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स जो भी है वो पेड बैच में अवेलेबल होंगी, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी बट, ठीक है। Where do we get the free mocks button? Free mocks, ठीक है, okay. So yes, Yashika, monthly magazine name basically, I will tell you this tomorrow when I'm talking about books and resources. मैं खुद वीलन लीगल की एक मंथली मैगजीन बनती है, लीगल की भी और नॉर्मल करंट अफेयर्स की भी, वो आपको फ्री में ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में फ्री मटेरियल फोल्डर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर टू गेट फ्री मॉक्स, मैंने कल आपको बताया था, मैं आज भी आपको बताऊंगी कि फ्री मॉक्स क्यों नहीं मिलते, ठीक है। तो जस्ट होल्ड इन पेशेंस फॉर सम टाइम एंड आई टेल यू कि वेयर कैन यू गेट फ्री मॉक्स, 2-4 और Excuse me, ma'am. नहीं Excuse मिलते me. फ्री मॉक्स। यस, I want to ask about RM batch. It's going to be online or offline? it's going to be online beta, and I'll tell you the details. Like listen very carefully guys. By the way, कल मैंने जब 29,999 पे उसको लॉन्च किया था, आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग ऑल्सो दैट 12 एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव टेकन, 10 ने तो ऑलरेडी बुक कर दिया, तो 2 ने रिक्वेस्ट करके कर दिया ऑन द सेम प्राइस। टुडे ऑल्सो वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, द प्राइस हैज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, यस, बट यू कैन टेक इट। तो स्टे रेडी if you want to come and be a part of this batch, if you want to book your seat as well, अपने मम्मी पापा को अभी अपने पास रख लेना, बहुत छोटी सी आपको पेमेंट करनी है and you can book your slot, okay? So I'll tell you, Akanksha, I'll tell you everything about the batch of Arambh, okay? So ideal timetable की अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले प्लीज गो एंड वॉच दिस टाइम टेबल। ये 12th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल आइडियल है। इट्स आई थिंक वेरी डुएबल, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हेफ्टी 8-10 घंटे का स्केड्यूल नहीं है और 6 से 7 घंटे भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब आई थिंक 4 घंटे में, 4.5-5 घंटे में आपका पूरा क्लैट का तैयारी निपट जाएगी, ठीक है। ये वीडियो आप देखना, उसके बाद आई विल वॉन्ट टू टॉक टू यू पीपल अ लिटिल मोर एंड देन आई विल बी गिविंग यू अ बेटर टाइम टेबल, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू that if when it comes to timetable or a study plan or something, how can Wheeler Legal help you? Yesterday itself I told you बच्चों that we have a feature which is called as WLL Shepherd. इसको ध्यान से देखना, ये लास्ट के 10 minutes हैं सेशन के, where I will tell you that what you can do and what we can do for you, okay? So we have a feature which is called as WLL, I hope WLL पता है ना, Wheeler Legal Shepherd. In this what we do, we have an expert who gets on a live call with you. सबसे पहले आप एक फॉर्म आपको मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिल करोगे अपनी डिटेल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का टाइम क्या होता है, आप ड्रॉपर हो, 11th में हो, 12th में हो, हाउएवर द केसेस, ठीक है। उसके बाद आपकी डिटेल्स को हम एनालाइज करेंगे एंड देन एन एक्सपर्ट विल गेट विद यू एंड यू विल गेट अ कस्टम स्टडी टाइम टेबल प्रिपेयर्ड फॉर यू एंड यू अलोन। When as and when like 15th अप्रैल हमारी क्लासेस शुरू होंगी, 15th एक्चुअली हमारा ओरिएंटेशन है, लाइक जब आपको सब चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। विद इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ योर लर्निंग, आपके एनरोलमेंट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये सेशन होगा एंड आपके पूरे 8 महीनों के बचे हुए 8 महीनों के लिए आपका एक स्टडी प्लान रेडी होगा आपके हाथ में, विच इज अकस्टम टू यू, विच इज जस्ट फॉर यू, पर्सनलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे सो जाते हो, रात में 4 बजे उठते हो, तो वो प्लान आपका उसी के हिसाब से होगा। अगर आप नाइट आउल हो, मतलब सोते ही 4 बजे हो सुबह, तो आपका प्लान उस हिसाब से होगा। सो दिस विल हेल्प यू एंड हु विल मेक दिस प्लान फॉर यू? कैन यू इमेजिन? It's not even me.
your plan will be made by CLAT toppers. So you will be actually getting 3 free sessions, जिसमें से पहला सेशन आपके मेंटोर का, जो हमारे CLAT के टॉपर्स हैं, you will be given one of the mentors, और वो आपके लिए through this scheme of book a mentor you will get it, and you will be given a study plan by these CLAT toppers. Okay, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके 2 और सेशंस होंगे जो आप फ्री कभी भी अपने आप इन आगे आने वाली जर्नी में यूज कर सकते हो, और अगर आपको उससे ज्यादा सेशंस भी चाहिए then you can just go on our feature of book a mentor. We have this, like we will have it on our website and on your dashboard also आपके पास होगा. आप एक बहुत नॉमिनल सी फीस पे करके अपने लिए एडिशनल सेशंस भी बुक कर सकते हो, और आप लाइव अपने क्लैट टॉपर से ही समझ सकते हो, सीख सकते हो, या फिर जैसे होता है ना कि आप मॉक के स्कोर पे अटक गए हो एंड यू वांट अ पर्सन हु हैज डन दिस फॉर हिमसेल्फ कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो आप यहाँ पे जाके उनकी बात उनसे सुन सकते हो. ठीक है. देन व्हाट अबाउट 11th एंड ड्रॉपर्स? अगर आप 11th में और ड्रॉपर्स में हो तब आपका स्टडी प्लान क्या रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में तो अभी मैंने 12th की बात करी है. तो वन थिंग, आई एम कमिंग विद अ डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर 11th एंड ड्रॉपर्स ऑल्सो, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. बट अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि आपका स्टडी प्लान एक क्लैट टॉपर ही बनाए, then even you can go and try out this feature of booking a mentor, and these very CLAT toppers इनमें से कोई भी एक आपको स्टिपुलेट होगा, लाइक आप चूज कर सकते हो किसको आपको लेना है. ठीक है, वो आपके लिए एक सेशन में आके, ना दिस विल नॉट बी अ फ्री सेशन फॉर दोज हु आर नॉट फुल कोर्स में, जो बच्चे नहीं है उनके लिए फ्री नहीं होगा, बट आप एक फीस पे करोगे अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक इट विल बी एनीथिंग अराउंड 100,000 to 1,500 bucks, and you can also get a session, live session of 30 to 45 minutes which will be there with a CLAT topper. Okay, तो आप भी ये कर सकते हो for the time being. Now, how can we help you with the books? So I'll tell you that we can even help you with the books. तो कल मैंने बताया था कि अगर आप Amazon पे नॉर्मली खरीदने निकलोगे तो 10 से 11 हजार की आपकी सारी बुक्स आएंगी which are important for the CLAT exam, right? But we have these books now. मैं आपको दिखाऊं ये ना बुक्स, ये बच्चों अभी बाहर से कवर डिफरेंट है, क्योंकि मैंने ये सैंपल के तौर पे अपने लिए मंगाई थी टू चेक द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स. ठीक है, तो मैंने इनको सबको देखा, पढ़ा, इनका कंटेंट देखा था मैंने. So these are all your books. I'll show you. So they will look something like this when they reach your home. तो इस तरह की बुक्स आपको मिलेंगी, which are 21 बुक्स हार्ड कॉपी जो आपको कोर्स में आपके साथ मिलेंगी. आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो. These are the 21 बुक्स that you will get. एक बार ध्यान से देखना, ये बुक्स है कॉन्सेप्ट बिल्डर. किस किस की? DI की, क्वांट की, लॉजिकल, क्रिटिकल, वर्बल, रीडिंग, एंड इवन कहाँ गई लीगल की कॉन्सेप्ट बिल्डर यहाँ पे है. ठीक है, उन्होंने नीचे लिख दी है. ठीक है, उसके अलावा जो बुक्स हमारे देखो, ये है हमारे प्रैक्टिस टेस्ट, क्वांट का, DI का, लॉजिकल का, और इनमें सब में अगर मैं आपको दिखाऊं, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी ठीक से. देयर आर 20 इन इट. ठीक है, 20 प्रैक्टिस टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेंगे. ठीक है, उसके अलावा आपके पास सेक्शन टेस्ट हैं. एंड बाय द वे, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन बुक्स में जो क्वेश्चंस है, अभी ये मेरे पास पूरी है भी नहीं, सब कुछ यहाँ पढ़ी है, कुछ यहाँ पढ़ी है. ठीक है, ये जो सारी बुक्स में जो क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस टेस्ट में, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट ऑन द डैशबोर्ड. ठीक है, सो डैशबोर्ड के क्वेश्चंस अलग हैं, वो आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पे प्रैक्टिस करोगे. ये बुक्स में आप ऑफलाइन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर क्लैट पैटर्न पे क्वेश्चंस है. ठीक है, ये सारी 21 की 21 बुक्स आपको मिलेंगी आपके डोर स्टेप पे, डिलीवर्ड इन अ हार्ड कॉपी मटेरियल. ठीक है, ये आपको आपके एनरोलमेंट के 10 से 15 दिन में, लाइक आपका एड्रेस में मिलेगा, और उसके बाद हम आपकी ये बुक्स आपको कुरियर कर देंगे. ठीक है, नाउ getting back to the point बच्चों, that I made a promise to you in the beginning of this session, right? So what was the promise that I made to you today? That you will know everything, about your CLAT exam. ठीक है, कि आप कैसे इसको कर सकते हो. ठीक है, oh I think it's a changed one. Wait, it had to be something else. Okay, it had to be. I made a promise that I will tell you the entire roadmap. Remember, I also told you that you will see a way to clear your exam. And I also promised that you can actually move on the road. Can you tell me with a yes or no, bachcho, that did I fulfill your promise today or not? The promise that I made to you, please tell me. Yes, Great, actually. आ रहा है समझ में? रोड मैप समझ में आया कि हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू. एंड फॉर ऑल दोस जिनके मैं अभी क्वेश्चंस मिस कर रही हूँ इसमें चैट में, आप मुझसे बाद में पूछ लेना क्वेश्चन सारे. ठीक है, नाउ I will just a moment बेटा. ठीक है, now let me tell you what is this We Learn Legal's CLAT coaching. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हमें क्यों चुने. ठीक है, ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि मॉक्स जो है वो 12,000 के आसपास एक मॉक बनता है बच्चों. बाय द वे, इसीलिए आपको फ्री मॉक्स इजीली मिलते नहीं है. कुछ फ्री मॉक्स आपको टेलीग्राम चैनल्स वगैरह से मिल जाएंगे, 1-2 चैनल्स के मैं लिंक्स वैसे मैं शेयर, आई डोंट रियली प्रमोट दिस, बट आप सर्च कर सकते हो. ठीक है, वहां पे आपको क्लैट के अराउंड चैनल्स होते हैं, वहाँ फ्री मॉक्स मिल जाएंगे. बट आई रियली डोंट नो, मैं उनकी गारंटी को बिल्कुल भी वाउच नहीं करती. ठीक है,
अब मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ बच्चों कि हमारा जो ये कोर्स है, मैं सबसे पहले आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको ना एक लिंक शेयर कर रही हूँ। देखो ये आज का चेकआउट पेज है। आप आज हमारे कोर्स को बुक कर सकते हैं फॉर ओनली 399 रुपीज। मतलब जो कोर्स की अमाउंट है वो कल से तो 2000 ज्यादा है, इट इज 31,999 टुडे, ओके, बट यू कैन बुक इट फॉर 399 टुडे। तो मैं ये लिंक जो है ना वो पहले आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, ताकि जब मैं आपको कोर्स समझा रही हूँ और किसी को अगर ये बुक करना है, बिकॉज दी सीट्स आर वेरी लिमिटेड, ओके, ये आपको मिलेगी नहीं, ये 10 अगेन आज के 10 बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मैं लिंक ऑलरेडी दे रही हूँ। आपको करना क्या मैं वो भी समझा दूंगी ताकि आप मिस ना करो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये लिंक काम नहीं करेगा, मैनुअली मुझे ओपन करना पड़ेगा, जो मुझे आता नहीं, मुझे टीम से बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे 399 में इसको बुक करने के लिए फॉर द होल कोर्स, मैं भी समझाती हूँ कोर्स क्या है, बट समझ लो, यहाँ पे आप डालोगे अपनी मेल आईडी, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, योर फोन नंबर, ठीक है। और बाय द वे ये मेरा फोन नंबर नहीं है, कभी इस पे कॉल मिलाने लग जाओ, ठीक है, दिस इज जस्ट अ फोन नंबर, मेरा नंबर वही जो आप लोगों के पास है, ठीक है। एंड यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, गेट एक्सेस। ऑटोमेटिकली इट विल ओनली आस्क यू टू मेक अ पेमेंट ऑफ 399 एंड आप इस कोर्स को अपने लिए आज के प्राइस पे 31,999 पे बुक कर लोगे एंड यू विल मेक अ पेमेंट ऑफ दिस 399 टुडे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पेमेंट करने के लिए बोल देगा, एंड एज सुन एज यू विल मेक अ पेमेंट यू विल गेट टू सी अ डैशबोर्ड विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी आपके लिए अवेलेबल है, एक सैम्पल डैशबोर्ड जो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक रिकॉर्डेड क्लास है ना, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, वो आपकी अलग होंगी, ठीक है। दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक हमारा साइलोजिज्म का है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी शीट आपको यहाँ पे साथ में देखो मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको कल दिखाया था, ये एक सैम्पल डैशबोर्ड है, मिनी डैशबोर्ड, जो आप सबको मिलेगा अगर आप 399 के लिए बुक भी कर रहे हो, ताकि आप देख सको कि हमारे स्टूडेंट पोर्टल का इंटरफेस कैसा है, ठीक है। देन आपको लीगल की एक सैम्पल क्लास मिलेगी, डेमो क्लास, आपको क्वांट की एक डेमो क्लास मिलेगी, हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसमें अपलोड करने का ट्राई करेंगे, बट अभी आपको ये वाली डेमो क्लासेस 399 के पेमेंट पे आपको मिल जाएंगी, ताकि आप देख सको कि क्या क्या किस तरह की क्लासेस हैं, किस तरीके का डैशबोर्ड है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस, कि हमारे पास ये मैंने आपको कल बताया था बच्चों सारा कुछ, कि अगर आप सारी चीजों को एड अप करते हो ना, मॉक्स को लेके, बुक्स को लेके, गाइडेंस को लेके, मेंटोरशिप को लेके, तो कहीं जाके जो आपकी एक टोटल कॉस्ट बनती है ना, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्स बनती है 4,82 के थाउजेंड के आसपास। मतलब ये देखो ये मिलजुल के होती है, अभी कोई कितने मॉक्स ले, कोई कितने मॉक्स ना ले, मैं एक वैल्यूएबल लर्निंग की कॉस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट टुडे आप इसको कर सकते हो, हमारे कोर्स को आप ले सकते हो, नॉट इवन लाइक, अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करूं, आप 1 लाख का 1.5 लाख का कोर्स लेते हो, इट इज नॉट इवन फॉर दैट, 1 लाख का भी नहीं है, 80,000 का भी नहीं है, 50,000 का भी नहीं है, 40,000 का भी आज नहीं है। यू कैन टेक आरंभ बैच विच इज एक्चुअली इट इज प्राइस्ड एट 39,999। अभी वेबसाइट पे आखिरी दिन आपको ये इतने का ही मिलेगा, क्योंकि कल ये जो बैच है ना वो 30,000 का था, 29,999 का। Today the price is increased by 2,000 rupees, but today you get it for 31,999 only, and you can book. It is only for today, and you can book. कल वाले मैंने बताया, देखो बच्चों ये मैंने ना ग्रुप भी बना दिया है हमारे पेड वाले बच्चों का, so they are already in this group, ठीक है। And this is for today's 10 students, 399 only। जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, एंड ये देखो आपके चैट बॉक्स में आ भी गया होगा, ठीक है। बैच एक्सपायर्ड शो हो रहा है भव्य, 400 में बैच या 32,000 में नहीं, आप 32,000 का बैच 400 में बुक कर सकते हो। मतलब आपको इतना ही पैसे पे करने पड़ेंगे, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, आपको पूरा भी एक बार देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, बट आप इस प्राइस पे बुक कर सकते हो इसको, ठीक है। ये हमारा बुकिंग पेज है, मैंने अभी आपको दिखाया, 399 ही आपको पे करने होंगे। इट विल एक्सपायर, इट विल नॉट वर्क आफ्टर 10 स्टूडेंट्स हैव पेड ऑन दिस लिंक, ओके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखता है, ठीक है। हाँ, जस्ट अ मोमेंट, ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, ओके। सो जब आप फुल कोर्स में आओगे ना बच्चों, आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। दिस सेगमेंट, दिस ग्रीन वन, यहाँ पे आपकी सारी लाइव क्लासेस अपलोड होंगी और आपको अपनी लाइव क्लासेस का अपडेट भी यहीं से मिलेगा, ओके। दिस इज फॉर योर ऑल करंट अफेयर्स मटीरियल, आपके वीकली लाइव सेशंस, वीकली करंट अफेयर्स क्विजेस यहाँ पे आएंगी। दिस इज फॉर क्वांट, योर मैथ सेगमेंट, दिस इज फॉर लीगल रीजनिंग, दिस इज फॉर एनालिटिकल रीजनिंग, एंड सिमिलरली ना यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड होने वाला है ऑफ स्टैटिक जीके, जिसमें जैसे आपकी मैंने भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दिखाई थी ना एनालिटिकल की, क्वांट की, जो हम आपको डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड पे मिलेंगी,
आपको ऐसी स्टैटिक जीके की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे गए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाती हूँ, चलो मैं आज आपको क्वांट का दिखाती हूँ, पर मैंने आपको एनालिटिकल दिखाया था ना। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे गए, अब आपको क्वांट ना क्लास में जाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है कि यार थोड़ा सा ना मैं खुद से भी पढ़ के जाना चाहती हूँ बिफोर आई अटेंड दी लाइव क्लास, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे आओगे, ये आपको मिल गया पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड, यहाँ पे क्वांट का भी इसमें और क्लासेस ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये अभी बन रहा है और बिल्ड होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी क्लास है 20 मिनट्स अप्रॉक्स की क्लास है, ठीक है। देन आपकी एवरेजेस पे ये क्लास है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो इसको, मिक्सचर, परसेंटेजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज क्लासेस अभी इसको हम लिख लेंगे और आई एम जस्ट शोइंग यू अ प्रोटोटाइप। सो ये सारी जो क्वेश्चन है, ये सारी क्लासेस है, देखो दे आर कवरिंग इट, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में सर समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से मैथ समझ में आए। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ योर मैथ्स का डैशबोर्ड, ओके, मतलब क्वांट का डैशबोर्ड। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स का आपको रिकॉर्डेड डैशबोर्ड और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग्स मी एवरीवन वेयर आई इंट्रोड्यूस विद utmost pride the batch for 2026 CLAT, the full 1 year batch. By the way, कल मैं आपको हमारे 2 year बैच के बारे में भी बताऊंगी, वो भी हमारे पास है, बट अभी आई वाज वर्किंग अ लिटिल ऑन दैट बैच, तो उसकी कुछ डिटेल्स बची थी, तो मैं आपको कल या परसों में उस बैच के बारे में जरूर बताऊंगी। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच, ओके। नाउ हियर दिस इज द क्लैट 2026 फुल बैच। इसके ये फीचर्स है मेन, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीजें मिलेंगी, देखो 750 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स आपको, मतलब ये लाइव क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट्स की मिला के, ठीक है। डाउट सॉल्विंग में तो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा भी, दैट हाउ इंपॉर्टेंटली आई टेक कि डाउट सॉल्व होने चाहिए। यू विल गेट क्विजेज एंड असाइनमेंट्स डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। देन वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली कंपाइलेशन की क्लासेस भी होंगी। अच्छा बाय द वे, जो मैगजीन्स आप पढ़ रहे थे ना भी खुद से, हम उनको हमारी क्लासेस में भी, लाइव क्लासेस में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को खुद से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप क्लासेस में टीचर के साथ उनको कवर करोगे, ठीक है। देन 30 फुल लेंथ आपको क्लैट एंड एलेट के मॉक्स मिलेंगे, राइट। देन आपको 300 प्लस सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपके पोर्टल पे मिलेंगे। नाउ दिस इज अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट्स, ओके। मैं भी ऑफलाइन या हार्ड कॉपी मटेरियल को काउंट भी नहीं कर रही इसमें, ठीक है, वो आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, मैंने आपको WLS शेफर्ड और बुक का मेंटोर का फीचर बताया ही था। एंड ये वाली आपको जो मैंने 20 हार्ड कॉपी बुक्स बताई, ये वाली जो है ये आपको आपके घर पे डिलीवर होंगी फॉर ऑल सब्जेक्ट। सबके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, सबके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, सबके कॉन्सेप्ट्स भी इसमें होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। देन कोर्स करिकुलम कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी टोटल 65 क्लासेस होंगी, वो क्या आपकी ग्रामर की, सेंटेंस की, पैराजम्बल्स की, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये आप स्क्रॉल डाउन करके किसी का भी देख सकते हो, जैसे क्वांट में आप देख लो कि इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। 1 क्लास 2 क्लासेस में आपकी होंगी, जो आपकी सिलेबस हम इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। ये फैकल्टीज हैं बच्चों, मैं खुद भी फैकल्टी हूँ, लॉ में आपको खुद पढ़ाऊंगी, लीगल रीजनिंग विल बी माय सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप मुझे वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट सो यू रिमेंबर, आई एम माई सेल्फ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, सो आई थिंक आई हैव गुड कमांड एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्टली डिलीवरिंग द सेम टू यू एज वेल, ठीक है। इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए वी हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, वी हैव प्रिया पांड्या मैम, जिनको 30+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई वाज शॉक्ड जब मैं इनसे फोन पे बात कर रही थी कनेक्ट करने के लिए ना, एंड शी टोल्ड मी कि शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 decades। देन मैम मुझसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी मुझसे बस 2 साल छोटी है। सो मैम का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, शी हैज हैड सो मेनी क्लैट टॉपर्स इन हर नेम। तो क्लैट, एलेट एंड आईपीमैट में मैम पढ़ा चुकी हैं। देन फॉर योर करंट अफेयर्स इन जीके वी हैव सुहानी मैम, इनको 3+ years एक्सपीरियंस है, एंड शी herself has cleared the preliminary of many state judiciaries, and she is here with you. Then for analytical reasoning, we have Lakshmikant sir, who has more than 12 years of experience in teaching analytical reasoning. And आप इनके बारे में अगर पता करोगे, he has been a part of almost all the top CLAT coaching, जितनी भी coachings के आप fan हो सकते हो या आपने सुना है उनका नाम, all of these teachers guys have been teachers there. And मैं अगर आज ही आपको बताऊं, it's funny, when I was preparing for this webinar, I got a message from somebody from Adda 24/7. I don't know how many of you have heard of it, but it's a very famous platform on YouTube. That they wanted to approach me for a job. Matlab, I should do some job for them, not that they want a job over here. So I'm telling that all the faculties that we have over here have worked in the top industry coachings, जो आप imagine कर सकते हो CLAT और ALET के लिए, and now they are here with me in Wheeler Legal, and they'll be teaching you, right?
एंड फॉर क्वांट वी हैव अब्बास इमरान सर हु इज करेंटली इन यूएस बाय द वे, वो वहीं से आपकी क्लासेस भी लेंगे. हाउ एक्साइटिंग वुड दैट बी. ही हैज 13+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन क्वांट्स एंड मैथ्स. ओके, ये फीचर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑफ बुकिंग अ मेंटोर. आपको 3 सेशंस फ्री मिलेंगे बैच के अंदर. उसके अलावा आप और भी सेशंस को बुक कर सकते हैं थ्रू आवर क्लैट मेंटोर्स. ठीक है, दे आर ऑल क्लैट टॉपर्स. ये आपको बाय द वे लास्ट दिन पे मिलेंगे. यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम इन द लास्ट सेशन. दे विल कम एंड टॉक टू यू. देन वी हैव ऑफ इज a social group that we have, a premium WhatsApp group. मैंने आपको भी दिखाया भी था, जिसमें you will be a part where, and वहाँ पे chat off नहीं है. You can ask any of these students also. You can message anytime directly. I'm also there in this group. अब आप कोई भी question है, कोई भी doubt है, आप पूछ सकते हो. And then WLL Shepherd, जिसमें आपका एक, जैसे शेफर्ड को देखा है ना आपने कैसा होता है, वो अपनी पूरी हर्ड को एकदम एक डायरेक्शन में लेके जाता है. शेफर्ड डॉग्स भी पता होंगे आपको. Similarly, this will help you to make your custom, your personalized study plan, right? And ये हमारे बच्चों के फीडबैक्स हैं, हमारे पेरेंट्स के फीडबैक्स हैं, एंड आप इन्हें देख सकते हो. यू नो, स्टूडेंट्स हैव लव्ड द सर्विसेज दैट दे हैव गॉटन ओवर हियर बच्चों, एंड you yourself can be a part of We Learn Legal. Okay, now with this I will start taking up your doubts, but I will share the link of this page with all of you, which is your checkout page. Okay, because then you will be able to, you know, make payment, because this offer again everyone will not be available tomorrow. If you think कि हमें पार्ट बनना है, हमें भी We Learn Legal की you know इस एक्सक्लूसिव तरीके से पढ़ना है, आप फिर पढ़ तो सकते हो, बट देन इस प्राइस पे नहीं होगा. कल इट विल इंक्रीज, द प्राइस विल इंक्रीज फर्दर, और आज आपको सिर्फ 399 में अपने इस प्राइस को लॉक कर देना है. हाउ इजी इज दिस? सो when you move ahead to take this course, you will have to pay this amount only, जो आज है, which is 31,999 and not the 40,000 अमाउंट. ओके, तो आज भी आपको पूरा 8,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. सो टाइम इज नाउ वेरी लिमिटेड. 10 सीट्स है सिर्फ. एज सुन एज दे गेट फिल्ड, I will close this link. Okay.